A very good evening to all of you. Hello, I am CA Aman Bansal. I welcome CA Sumit Garg ji, our eminent speaker CA Rajiv Jain ji, our guest CA Bharat Jain ji, Chairman of Hisar Branch, and CA Pawan Mittal ji, Vice Chairman of Hisar Branch, and all the dear participants and cherished fishes to this 5-day refresher course on NPA. This is our first series on refresher course on NPA. In this series, we will practically understand the provisions, exemptions, taxation, compliances, and ITR, registered and unregistered trust of charitable institutes. The refresher series is organized by CASA, which is initiative taken by CA Sumit Garg along with 100 plus team members. CASA intend to explore various challenges and issues faced by professionals. CASA NGO is regularly organizing meetings, seminars, webinars for more benefit of the all members. In this last 1 year, CASA has organized more than 300 webinars, and CASA has organized webinars, seminars on various topics like Ind AS, GST, accounts, etc. Apart from learning sessions, CASA has come forward in this time of COVID pandemic to support the members as well. In today is our first session of the series, and we will be discussing section 11, section 12, section 12 capital A, B, including taxability of transaction from corpus funds, definition of charitable purpose as per section 2, clause 15 of Income Tax Act. Hope all of you will enjoy and give us your valuable feedback to the team CASA. We have with us CA Sumit Garg, the founder member of CASA and fellow member of ICI. He is also the regional counseling member of NIRC from the last 5 years. Now, I am pleased to welcome and introduce our today's speaker, CA Rajiv Jain. CA Rajiv Jain is FCA, LLB, BCom Honors. He goes above and beyond performing the regular responsibility of a chartered accountant. He is an expert in direct taxes. He is currently practicing as CA partner at SSAR and Associates, New Delhi, assisting multinational companies and businesses with his multifaceted expertise, including finance and management, audit, and direct taxes, of course. He is pleading income tax appeals at ITAT. He is adjudged and awarded as Best Speaker of NIRC by NIRC of ICI. He had already delivered hundreds of informative lectures on finance bill, income tax, including appearances on television. His flair for writing has resulted in various thought leadership articles published in various professional magazines and newspapers. He is also an active member of ITAT Bar Association, New Delhi. And now, I would like to hand over the stage to CA Sumit Garg, sir. Over to you, Sumit. Thank you, Amanji. Thank you for wonderful introduction of our guest speaker, C. Rajiv Jain ji. And thank you to all participants for joining and showing faith on this platform. Amanji, forget to introduce and welcome our guest of honor, C. Bharat Jain. Bharat ji, स्वागत है आपका in this platform. Bharat ji being a chairman of the big branch in our region, Hisar branch. So once again, welcome to you on this platform. And each participant, I hope everyone will enjoy today's session and entire series. If you find any suggestion what we can improve further for anything, then definitely we will happy to incorporate all those suggestions. And our coordinator, Aman Bansalji, thank you. And the CACM Jain ji, who has designed this course wonderfully and will discuss with the Rajiv Jain ji as of now, whenever they require any input. So before starting technical session, I request Bharat Jain ji, Chairman of Hisar branch, to say a few words. Thank you, Sumit ji. Rajiv ji, other senior members, young members, सभी को मेरा नमस्कार. हिसार ब्रांच की तरफ से नमस्कार सभी आपको. और सुमित जी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब पैंडेमिक के टाइम में जब काम नहीं हो पा रहा है और राजीव जी कह रहे हैं कि अभी काम नहीं आ रहा, अभी घर पे हैं अगर सर है तो क्यों ना पढ़ाई कर ली जाए. और ये बिल्कुल सही समय है. अभी इनकम टैक्स का पोर्टल भी बंद है, तो अभी मेरे को लगता नहीं ज्यादा काम है हमारे पास कोई, तो अभी इस समय को
पढ़ाई में यूज करके और अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन की जाए तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। और सुमित जी, जैसे सुमित जी ने बताया कि काफी वेबिनार कर रही है कासा, सुमित जी से मेरी बात भी होती थी, सुमित जी बोलते थे वेबिनार ज्वाइन कीजिए, तो मैं बोला यार सुमित जी आप बहुत सारे वेबिनार करते हैं और देखते हैं ना इतने सारे हो जाते हैं कि कौन सा ज्वाइन करें कौन सा ना करें। तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। ओवर टू यू सुमित जी। Thank you, Bharat ji, for your appreciation. And now I would like to invite speaker of the today's session, C. Rajiv Jain ji. Rajiv Jain ji has some limitation of time, so he has 90 minutes from now. So our course director CM Jain or Asa Sharma ji will discuss if any issue from the participant. So over to you, Rajiv sir, for your deliberation. Thank you, Sumit, and thank you, Aman Bansal ji. Learned fellow professional colleagues who have joined this Zoom program organized by CASA. Sumit Garg, Aman Bansal ji, Chairman, Hisar Branch, Vice Chairman, Hisar Branch, my learned friend, CM Jain, and all the fellow professional colleagues. So my first request to all of you is कि मैंने अपना गैलरी व्यू खोला हुआ है, तो यू मे ओपन योर वीडियोस, और बिकॉज मुझे थोड़ा सा आई कांटेक्ट से बोलने की आदत है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं और आप लोगों से नजरें मिला के बात करें, सो दैट मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है। बट राजीव सर, मैं एक इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैंने सभी को म्यूट कर रखा है, तो वेदर आई शुड अलाउ टू अनम्यूट? चैट में डाल सकते हैं, अगर कोई क्वेरी होगी किसी की तो चैट बॉक्स में। देखो एटलीस्ट जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट है जो मेरे साथ इंटरेक्शन करे, तो एटलीस्ट एक दो लोगों को तो आप म्यूट करके। डेफिनेटली आई विल अनम्यूट देम सर, जो भी कहेगा मैं अनम्यूट कर दूंगा एज हाँ, तो अभी कम से कम आप अनम्यूट रहना, एक सीएम जैन साहब को अनम्यूट कर दो, आशा जी को कर दिया, आशा शर्मा इज आल्सो अमन बंसल जी को अनम्यूट कर दो, तो जी। उससे क्या होगा कि थोड़ा इंटरेक्टिव रहता है ना, तो मेरे को आसान होता है बोलना। श्योर सर, वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। श्योर सर। एक सुखविंदर मानस जी हैं द्वारका से, उन्हें भी अनम्यूट कर रहा हूँ, आल्सो वेरी कोऑपरेटिव मेंबर। श्योर सुखविंदर मानस, मिथुन मानस हमारे बड़े अच्छे क्रिकेट के प्लेयर थे, दिल्ली से खेलते थे। तो फ्रेंड्स, बिफोर आई go and deliberate upon the subject allotted to me, इस कोविड के पीरियड में सेकेंड वेव हैज बीन वेरी devastating, and all of us and rather each one of us has lost someone dear or dear. तो सबसे पहले तो मैं सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और जितने भी हमारे साथी हैं, जो परिवार हैं, जिनके नजदीकी लोग बिछड़ गए हैं, उन सभी को इस कष्ट को, इस दुख को सहने की शक्ति परमात्मा प्रदान करेंगे, ऐसी प्रभु से मंगल कामना करता हूँ। और इस छोटी सी प्रेयर के बाद नाउ आई रिटर्न टू माय टॉपिक। अब 2 महीने बाद हम लोग कोविड से बाहर आए हैं, थिंग्स आर लुकिंग बेटर, और अगर लगता है कि थोड़े दिन में शायद हमारे काम नॉर्मल शुरू हो गए हैं और फर्दर इसमें नॉर्मलिटी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, एंड वी विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज अवर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हालांकि कोविड में पासा भी और बहुत सारे लोग आप लोग काम करते रहे ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो कोविड पीरियड था, वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि इतना डिवास्टेटिंग था और हर घर में जिस तरीके से तकलीफ थी, तो वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एनीथिंग। लेकिन नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, और अब ये समय आ गया है कि हम अपनी नॉलेज को रिकलेक्ट कर लें, रिवाइव कर लें, किताबें दोबारा से उठा लें, और लॉ को समझ लें। तो आज का टॉपिक रखा है आपने एनजीओज, एनपीओज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी भी नाम से पुकारें, तो उनका जो लीगल फ्रेमवर्क है, कहाँ उनकी टैक्सेबिलिटी होती है, कैसे उनकी टैक्सेबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इस पूरे आपके ग्रुप ऑफ सेमिनार्स में सुमित ने मुझे दी है। So during the course of my deliberation, I will cover entire legal framework under the Income Tax Act, which governs all non-profit organization or charitable institutions or religious institution. तो सारे sections को मैं go through करूँगा, and I will dissect each and every section,
और उस सेक्शन को डाइसेक्ट करने के साथ साथ उसमें क्या क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या उसका असल में मैंडेट है, उस बात को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले बात समझते हैं कि जो सेक्शन, हमें सबको पता है कि जो ट्रस्ट के सेक्शन होते हैं वो सेक्शन 11, 12 एंड 13 इसमें कवर होते हैं, राइट। एंड दिस इज पार्ट ऑफ चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, which says that income which do not form part of total income, right? हमें इनकम की डेफिनेशन पता है, सेक्शन 224 में लिखी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में इनकम की डेफिनेशन आती है, फिर चार्जिंग सेक्शन आता है, फिर हमारे टैक्स रेजिडेंस के सेक्शन आते हैं, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आता है, फिर सेक्शन 10 आता है एग्जाम्पल का चैप्टर 3 में, और सेक्शन 11 आता है कि कौन सी इनकम चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एग्जाम्प्ट है। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ दोनों चीजों को साथ समझते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट, ये जो सेक्शन 11, 12 एंड 13 है, ये दोनों पे अप्लाई होते हैं। सेक्शन 215 में जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वहां डेफिनेशन करता है वो सिर्फ चैरिटेबल पर्पस की, राइट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट दोनों के दोनों इस स्पेशल प्रोविजन से, इस स्पेशल सेट ऑफ सेक्शन से गवर्न होते हैं। और आप ये मान के चलिए कि ये जो सेक्शन 11 से लेके और सेक्शन 13 तक का जो चैप्टर है, ये एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट कोड है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम ऑफ ए चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। बात समझ में आ गई सर? सेक्शन 11, 12 और 13 ये चैरिटेबल ट्रस्ट को गवर्न करने के लिए इंडिपेंडेंट कोड है, यानी कि इनकी जो इनकम है वो भी इन्हीं सेक्शंस में कंप्यूट होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम गिवन अंडर सेक्शन 14। बात समझ में आ गई? यानी कि ये कंप्लीट कोड है। तो आप समझते हैं कि हमारे सेक्शन कौन कौन से गवर्न होते हैं, या सेक्शन कौन कौन से गवर्न होते हैं। इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं हम कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, जो हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटेबल का मतलब है व्हेन द पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूट इज पब्लिक वेलफेयर, राइट। और रिलीजियस ट्रस्ट का मतलब हुआ व्हेन if it is a religious trust, it is for public welfare, it is open for public or a class of public। अब एक एग्जांपल से बात को समझें कि हमने देखा लाल किले के सामने लाल मंदिर है, तो जो लाल मंदिर है इट इज ओपन टू पब्लिक, और सीएम जैन साहब ने जो अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है इट इज नॉट ओपन टू पब्लिक। बात समझ में आ गई? तो क्या हुआ कि ये जो लाल मंदिर जी है ये हो गया पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो ये मंदिर है इट इज ओपन टू पब्लिक एट लार्ज। इन द सेम मैनर जब हम गुरुद्वारे को देखेंगे या किसी मस्जिद को देखेंगे या किसी चर्च को देखेंगे, इट इज ओपन टू पब्लिक एट लार्ज। तो ये हो गया इसका पब्लिक कैरेक्टर, राइट। तो इस सेक्शन की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए यू हैव टू बी ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। यानी कि जो एनजीओज हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, दे शुड बी फॉर्म्ड एंड एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। अगर ये प्राइवेट बेनिफिट देते हैं तो ये इस चैप्टर में फॉल नहीं करेंगे। क्लियर? ये बात हमें क्लियर यहाँ पर समझ में आ गई कि जो घर में किसी ने अपने मंदिर बना दिया, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए बना लिया। सपोज करिए कि हमारे ऑफिस में 10 लोगों का स्टाफ है, एक हमने अपने ऑफिस में एक डिस्पेंसरी खोल दी और हमने कहा कि भाई हमारे 100 आदमियों का स्टाफ है या 200 आदमी का स्टाफ है, ठीक है। तो अपने स्टाफ के लोगों के लिए हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक डिस्पेंसरी खोल दी और एक डॉक्टर को बिठा दिया। इट इज ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज नो, बिकॉज बेनिफिशियरी इज नॉट पब्लिक एट लार्ज। तो आपके लिए जो बेनिफिशियरी है इट शुड बी पब्लिक एट लार्ज, राइट। और सेक्शन 11, 12 और 13 के लिए जो प्री रिक्विजिट है कि अगर आपको इस सेक्शन में जाना है और इनकी एग्जम्पशन आपको क्लेम करनी है, तो आपके लिए पहली बात, आपका जो ट्रस्ट है उसका रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, then you will not be able to avail benefit of section 11 to section 13. Second point, it should be a non-profit organization. आपका प्रॉफिट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अगर आपने ऑब्जेक्ट
आपने बना लिए हैं और सेक्शन 12A में आपने रजिस्ट्रेशन दे दिया है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, राइट। जो ट्रस्टी हैं और जो उनके रिलेटिव हैं, उनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट का उपयोग, ट्रस्ट के पैसे का उपयोग नहीं हो सकता, राइट। और तीसरा, एक डिसोल्यूशन क्लॉज आपके रिटर्न ट्रस्ट के अंदर होना चाहिए, दैट विल डिटरमिन कि अगर किसी कारण से संस्था का डिसोल्यूशन होता है, देन हाउ द मनी, जो भी आपका एक्रेडिट मनी होगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हाउ दैट मनी विल बी यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि वो वापस ट्रस्टियों के पास नहीं आ सकता। क्लियर। तो एनपीओ होने के लिए, एनजीओ होने के लिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए, और साथ में सेक्शन 11 से 13 तक की एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। अगर ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, देन यू विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और ए पब्लिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर सर, बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कि टोटल सेक्शंस हमारे पास कितने होते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 215, डिटेल में समझेंगे अभी। 215 डिफाइंस चैरिटेबल पर्पस। रिलीजियस ट्रस्ट की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, जो कॉमन पार्लेंस में हम जो रिलीजियस ट्रस्ट समझते हैं उसी की डेफिनेशन काम आएगी। सेक्शन 224 इट डिफाइंस इनकम। देन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ये एग्रीकल्चर इनकम की बात करता है। सेक्शन 1023C ये पैरेलल रिजीम है सेक्शन 11 के साथ, जहां पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अस्पतालों को के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है एग्जेम्पशन का, वो एक पैरेलल मैकेनिज्म है एज पर सेक्शन 11, 12 और 13। बिल्कुल इसका एक और मैकेनिज्म है, आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसको डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो प्रोविजंस हैं दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस। जो हमारे सेक्शन 11, 12, 13 के जो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 1023C में भी वो सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 1046, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रस्ट होते हैं, ये गवर्नमेंट के ट्रस्ट होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 12A, सेक्शन 12AA, सेक्शन 12AB एंड सेक्शन 13। ये सारे करके हमारे सारे सेक्शन कवर हो जाते हैं। और इसके बाद सेक्शन कवर होता है सेक्शन 115 बीबीसी, सेक्शन 115 बीबीसी, और एक होता है सेक्शन 115 टीडी, सेक्शन 115 टीडी, और एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। तो ये सारे सेक्शन हैं, ये सारे एनजीओ को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को और रिलीजियस ट्रस्ट को कवर करते हैं, राइट। तो आपको बेसिक सेक्शन आपने सारे नोट कर लिए, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, सेक्शन 250, सेक्शन 224, सेक्शन 10(1), सेक्शन 1023C, सेक्शन 1046, और साथ में 11, 12, 12A, 12AA, 12AB, सेक्शन 13, राइट। और साथ में फिर सेक्शन 62, सेक्शन 63, ये क्लबिंग ऑफ इनकम के जो प्रोविजन है, ये भी ट्रस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं, राइट। सेक्शन 115 बीबीसी, सेक्शन 115 टीडी और सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आपको अभी तक ट्रस्ट का बेसिक था का समझ में आ गया। ये जो ट्रस्ट की इनकम है, अब सेक्शन की स्कीम को समझते हैं कि चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया सेक्शन 215 में, इनकम को डिफाइन किया सेक्शन 224 में। सेक्शन 224 के दो क्लॉजेस हैं जो आप नोट कर लें, रोमन का 2A और दूसरा है रोमन का 6। 2A जो डिफाइन करता है वो करता है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट by charitable or religious organization that will be considered as its income। और जो क्लॉज 6 है सेक्शन 224 का, वो डिफाइन करता है दैट द इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 45 कैपिटल गेन्स, वो ट्रस्ट के ऊपर दोनों सेक्शन अप्लाई, राइट। यानी कि ट्रस्ट की इनकम क्या होगी,
जब हम सेक्शन 11 को पढ़ना शुरू करेंगे और सेक्शन 12 को पढ़ना शुरू करेंगे, देन वी नो कि जो ट्रस्ट की इनकम कौन कौन सी होती है। कई बार हमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ट्रस्ट को रेंट आ गया और हमने जाकर उसको हाउस प्रॉपर्टी को दिखा दिया, है ना, हमने ट्रस्ट की कोई बिजनेस इनकम बना दी, है ना, हमने ट्रस्ट को इंटरेस्ट और एफडीआर आया, हमने जाकर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे दिखा दिया। कैन वी डू दिस? द आंसर इज नो। जो ट्रस्ट की इनकम है, दैट इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट। ठीक है सर, और ये हेडलेस इनकम, इस बात को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 14 में हेड लिखे हुए 5 हेड ऑफ इनकम लिखे हुए, राइट। लेकिन जो ट्रस्ट की इनकम है वो हेडलेस इनकम है, उसको किसी को हेड में नहीं ले जाना आपको। वो ना वो सैलरी में जाएगी, ना वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, ना वो आपकी बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, ना वो आपकी कैपिटल गेन में जाएगी, और ना ही वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपका एक कंप्लीट कोड ऑफ हेडलेस इनकम है, जिसमें लिखा है कि आपकी इनकम क्या होगी और आपको उसके अगेंस्ट अलाउ क्या होगा और आपकी इनकम किस तरीके से कंप्यूट होगी। बात समझ में आ गई? जनरली हम लोग जब बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिजनेस की बैलेंस शीट देखी, इधर हमने देखा रेवेन्यू का, रेवेन्यू आइटम को हमने इनकम में ले गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने पीएनएल में डाला और नेट हमारा इनकम आ गया। तो क्या ट्रस्ट की इनकम भी ऐसे कंप्यूट होगी? द आंसर इज नो। ट्रस्ट की इनकम इस तरीके से कंप्यूट नहीं होती। अगर आपके ऊपर सेक्शन 11, 12 और 13 ट्रिगर होंगे तो आपकी इनकम सेक्शन 11 के हिसाब से कंप्यूट होगी। बात समझ में आ गई? बाकी हेड्स ऑफ इनकम आपको नहीं लगेंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछते चलेंगे। अब ट्रस्ट की इनकम कौन कौन सी हो सकती है? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के पास जो भी प्रॉपर्टी है उससे जो भी इनकम होगी, दैट विल बी इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट। जो चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो भी इनकम आएगी उसकी प्रॉपर्टी से, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में आए, चाहे वो रेंट की फॉर्म में आए, चाहे वो डॉक्टर, आपने पेशेंट्स को आप इलाज करते हैं, आपने 2-2 रुपए की पर्ची काट दी, चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाते हैं उसकी फॉर्म में आए, चाहे आपके बच्चों से स्कूल फीस की फॉर्म में आए, जो प्रॉपर्टी आपकी जो भी सोसाइटी है उसके जो ऑब्जेक्ट हैं और उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपके ट्रस्ट के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वहां से जितनी भी इनकम आएगी, दैट इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट। और इसके अलावा आपकी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपके पास दान आएगा, जो आपके पास चंदा आएगा, वो आपकी इनकम है। बात समझ में? अब उसी, अब हमने देखा जब सेक्शन 215 को पढ़ते हैं विच डिफाइंस चैरिटेबल पर्पस, तो चैरिटेबल पर्पस में 7 एक्टिविटी इंक्लूड होती है कि कोई भी संस्था जो इन 7 एक्टिविटी में लगी हुई है, ये 7 पर्पस के लिए काम कर रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। पहला क्या है? रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, मेडिकल, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, एंड थर्ड इज जनरल, 7th इज जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इन 7 ऑब्जेक्ट में यदि कोई आप काम करते हैं, ठीक है, देन दिस इज अ चैरिटेबल पर्पस। रिलीजियस का हमारे को क्लियर हो गया। चैरिटेबल पर्पस इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में डिफाइन करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसकी बिजनेस की रिसीट आपकी टोटल संस्था की रिसीट से अगर 20% से ज्यादा एक्सीड करती है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज चैरिटेबल पर्पस। तो आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, सपोज करिए एक संस्था है और उस संस्था में आपने चैरिटेबल पर्पस से कुछ सामान किताबें बेचनी शुरू कर दी, या कोई आपने और उसमें कोई प्रॉफिट एक्टिविटी का काम शुरू कर दिया, या आपने जैसे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और आपने कोई लैब खोला है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी खोली है विच इज इंसिडेंटल टू योर ट्रस्ट, लेकिन आपने उसमें किसी बिजनेस एक्टिविटी को आप सर्विस दे रहे हैं और वहां से अगर आपको कोई रिसीट आती है, ठीक है, तो अगर 20% से ज्यादा उससे इनकम आएगी आपको, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। और वो बिजनेस चैरिटेबल पर्पस तब तक रहेगी कि आपकी टोटल रिसीट 20% से कम ना है, कम रह जाए। 20% से कम हो तभी वो चैरिटेबल पर्पस रहेगा, और 20% से ज्यादा हो जाएगी देन इट विल बिकम बिजनेस। अब जैसे पतंजलि का केस है, आप साबुन बेच रहे हैं, टूथपेस्ट बेच रहे हैं, देन यू कैन नॉट क्लेम योरसेल्फ कि मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूँ, राइट। तो आप एक पब्लिक ट्रस्ट बना के, जैसे अब आप दूसरे देखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग में, हम देखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग वाले साबुन भी बेचते हैं, तेल भी बेचते हैं, ठीक है, दे इंडल्ज इनटू सो मेनी एक्टिविटीज, और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी है।
तो till that time that activity does not exceed 20% of the total receipt of the trust, तब तक तो वो आपके इंसिडेंटल में जाके कवर हो सकता है, अदरवाइज इट विल बिकम ए बिजनेस एक्टिविटी और फिर उसके ऊपर वो बिजनेस इनकम के प्रोविजन लग जाएंगे और उसका असेसमेंट वहां पर जाके कंप्लीट हो जाएगा और उस बिजनेस से जो इनकम आएगी उसके अगेंस्ट आपको कोई फर्दर एग्जेम्पशन जो ट्रस्ट को मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? सेक्शन 215 क्लियर हो गया? सर एक क्वेश्चन है सर, एक सर अभी पूछ लूं या बाद में हाँ, पूछूं? पूछो। सर ये सर जो 215 सर डेफिनेशन की जो बात कर रहे हैं और आपने बताया कि 20% का बार है कि आपकी जो बिजनेस इनकम हो है वो 20% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये वाली रिस्ट्रिक्शन जो है सेक्शन 215 में वो सिर्फ 7th लिंक जो है जनरल पब्लिक ऑब्जेक्ट के लिए उसी के लिए है, तो क्या ये 20% की जो रिस्ट्रिक्शन है ये बाकी ऑब्जेक्ट्स में जो बिजनेस चलते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं है? जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा महाराज जी। अब जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से बात को समझते हैं कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने खोला और उस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर मैंने एक अस्पताल खोल दिया, राइट? मेरा प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है और मैंने सपोज कर लिया ओपीडी खोल ली, है ना, अस्पताल नहीं खोला, कोई छोटी सी डिस्पेंसरी खोल ली, कोई छोटा अस्पताल खोल लिया, कोई मैंने लैब लगा ली जहाँ पर मैं जैसे दिल्ली में आनंदपुर साइड में चैरिटेबल एक्सरे होते हैं, है ना, चैरिटेबल सीटी स्कैन होते हैं, चैरिटेबल लैब टेस्ट होते हैं, राइट? तो वो जनरल पर्पस के अलावा किसमें फॉल करता है? वो मेडिकल में फॉल करता है, ठीक है? अब यहाँ पर प्रॉफिट भी आ सकता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, कि यहाँ पर जब वो आप जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं या जिसका आप ओपीडी की पर्ची काट रहे हैं या आप अस्पताल में अगर इलाज कर रहे हैं, तो हमें ओवरऑल देखना है कि जो ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट है इट शुड नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग, और अगर वो प्रॉफिट आएगा तो इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक वेलफेयर और फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल एक्टिविटी, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द पब्लिक। जब तक उसका पर्पस उस मेडिकल पर्पस में रहता है, तो अगर वहां पर आपका सरप्लस भी आ जाएगा, इवन देन इट विल नॉट बी काउंटेड एज योर बिजनेस। बात समझ में आ गई? आपने एक लैब खोल ली और उस लैब में आपने जो चार्जेस लिए और सपोज करिए वो आपके कॉस्ट से ज्यादा आ गए, तो लैब वो बिजनेस में नहीं आएगा, लैब की जो रिसीट आएंगे वो बिजनेस में नहीं आएगी। इन द सेम मैनर आपको यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, इन द सेम मैनर आपको स्कूल चला रहे हैं, आपको कॉलेज चला रहे हैं, आप बच्चों से फीस ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी बैलेंस शीट में जाके सरप्लस आ गया, ठीक है, तो वो आपका बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर? आंसर क्लियर हो गया आपका? हाँ सर आंसर क्लियर है, लेकिन मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था सर कि 20% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो 7th लिंक के लिए है या सारे जितने भी बिजनेस बाकी मैंने तो इसीलिए एग्जांपल दिया ना, सिर्फ 7वें के लिए, बाकी के लिए ओनली 7वें, बाकी के लिए जनरल पब्लिक। थैंक यू सर। चलिए सर, हमने सेक्शन 215 को कवर कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 11 में। तो अब हमने समझ लिया कि ट्रस्ट की इनकम कौन कौन सी होगी। इनकम derived from property held in trust including the business which is held in trust. Property held in trust includes a business undertaking. ठीक है सर, वहां पर कोई बिजनेस हो रहा है, कोई साबुन तेल बेच रहे हो आप, कोई दवाई बनाकर बेच रहे हो, आयुर्वेदिक दवाई बनाकर बेच रहे हो, पब्लिक के बेनिफिट के लिए बेच रहे हो, तो वो भी उसमें कवर हो जाएगी, राइट? तो दो तरह की आपके पास इनकम आएगी, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास कोई सैलरी की इनकम नहीं आएगी, आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं आएगी, आपके पास बिजनेस इनकम नहीं आएगी, आपके पास कैपिटल गेन नहीं आएगा और आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं आएगी। ये सारी की सारी आएगी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट, और दूसरा आएगा आपके पास चंदे का पैसा। और ये सारी की सारी जो रिसीट है ये आपकी टैक्सेबल रिसीट है। बात समझ में आ गई? ये आपकी टैक्सेबल रिसीट है जिससे जो आपकी ग्रॉस इनकम में काउंट होगी। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 11 को। सेक्शन 11 कहता है कि जो आपकी इनकम आई ट्रस्ट की फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट, एनी इनकम अर्न्ड बाय चैरिटेबल और रिलीजियस सोसाइटी फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट, उस इनकम को यदि आप उसके पर्पसेस के लिए अप्लाई कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपका खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट आई या आपके पास चंदा, आपने यदि वो पैसा जिस पर्पस के लिए आपका ट्रस्ट बना है, चाहे वो चैरिटेबल पर्पस है या फिर आपका रिलीजियस पर्पस है, उस पर्पस के लिए यदि आपने पैसा खर्च कर दिया
तो उस पैसे को, उस एप्लीकेशन को आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट विल बी अलाउड एज एप्लीकेशन। ठीक है सर। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाते जितना आपको मिला है, तो 15% आप फ्यूचर के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 11(1)(a) के हिसाब से जितनी भी आपकी टोटल इनकम पूरे साल में आपको रिसीव हुई है, एक्रू हुई, यानी कि ट्रस्ट के लिए, आपके लिए, आपकी जो अकाउंटिंग है, आपका कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें कंफ्यूज नहीं होना। ट्रस्ट के केस में आपकी जो इतनी भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट है वो आपकी इनकम है। बात समझ में आ गई? या तो आप उसको एक्रूअल सिस्टम पे फॉलो करोगे या रिसीप्ट सिस्टम पे फॉलो करोगे, जितनी भी इनकम आएगी वो सारी आपकी इनकम है। और जितना आपका एप्लीकेशन है दैट विल बी अलाउड, दैट इनकम विल बी एग्जेम्प्ट। उन्होंने कहा कि जो इनकम आई है दैट विल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? 85% तक अगर आपने अप्लाई कर दिया तो 15% आप एक्यूमुलेट कर दीजिए। सपोज करिए किसी एक संस्था को अगर पूरे साल में 10 लाख रुपए की डोनेशन मिली, 10 लाख रुपए की टोटल इनकम आई इंक्लूडिंग डोनेशन, तो उसमें से सपोज करिए आपने 7 लाख रुपए खर्च किए, तो 7 लाख रुपए का तो आपको उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन मिल जाएगा और 7 लाख रुपए की इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। और 1,50,000 15% आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो 1.5 लाख रुपया आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि 7 लाख प्लस 1.5 लाख, 8,50,000 रुपया आपका एग्जेम्प्ट हो गया। और 10 लाख में से या 8,50,000 रुपये घटाने के बाद जो 1.5 लाख रुपए बचेगी वो आपकी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम बचेगी। ठीक है सर, ये सेक्शन 11(1)(a) का मैंडेट। सर एक स्मॉल क्लेरिफिकेशन सर, इफ यू अलाउ मी प्लीज सर। जो ये हम बात कर रहे हैं, सो सेक्शन 11(1) में जो सर हम बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, तो सो इज इट लाइक डज इट मीन कि अगर 10 लाख रुपीज की हमको डोनेशन मिली है तो हमारी इनकम 10 लाख रुपीज है? नॉर्मल कुछ में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि 10 लाख रुपीज इनकम है, 8 लाख रुपए हमने सपोज हमने डोनेशन दे दिया तो हमारी 2 लाख इनकम है। तो हमारे को ग्रॉस इनकम से मतलब है यहाँ पे कि जो डोनेशन हमारे को मिली, जैसा कि आपने 224 रोमन 2A में भी बताया आपने का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो इनकम मानी जाएगी। इज दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? मैंने आपको कहा कि जितनी भी आपकी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट, वो ग्रॉस इनकम आपकी काउंट होगी प्लस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस। राइट। बात समझ में आ गई? जो सपोज करिए आप इस 10 लाख रुपए का मैं ब्रेकअप करता हूँ, 10 लाख रुपए में सपोज करिए आपके पास 2.5 लाख रुपए रेंट आया है, आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, और 2.5 लाख रुपए आपके पास रेंट आया है और 7.5 लाख रुपए आपके पास डोनेशन आई है, राइट? तो यहाँ आपको रेंटल इनकम को 2.5 लाख रुपए को हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेके जाना, ये आपकी 10 लाख रुपए की ट्रस्ट की इनकम होगी। इसका कुछ और टुकड़े भी हो सकते हैं, 7.5 लाख रुपए आपका जो है डोनेशन हो सकता है, 1.5 लाख रुपया आपका जो है ना इंटरेस्ट ऑन FDR हो सकता है और 1 लाख रुपए रेंट हो सकता है, वटेवर में भी। लेकिन ये पूरी की पूरी आपकी इनकम में एक जगह जाके ग्रॉस हो जाएगी और उसके अगेंस्ट आपको एप्लीकेशन मिलेगा विच यू हैव मेड फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। जो आपका चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है जिसको आपने जो उसके अगेंस्ट खर्चा कर दिया, दैट विल बी अलाउड एज एप्लीकेशन। तो जो आपका नेट बचेगा अगर वो 15% से ज्यादा है तो दैट विल बिकम योर टैक्सेबल इनकम। अगर जहां पर मैंने सीधा आपको एग्जांपल बताया कि अगर 10 लाख रुपए की आपकी टोटल ग्रॉस इनकम बन गई तो उस 10 लाख में से अगर आपने 1.5 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर सकते हो तो 8.5 लाख रुपए यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई। अगर जितना भी आपका शॉर्टफॉल हो जाएगा 8.5 लाख से, अगर आपने 8.5 लाख से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो नेचुरली आपका एक्यूमुलेशन 15% से रिड्यूस होकर, सपोज कीजिए इस केस में आपने 9 लाख रुपए खर्च कर दिए, 9 लाख रुपए खर्च कर दिए तो आपका फ्यूचर एक्यूमुलेशन 1 लाख रुपए रह जाएगा, राइट? योर टैक्सेबल इनकम विल बी 0। हाँ सर, एक फॉलो अप क्वेश्चन सर, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होंगे जी सर, क्वेरी अगर बाद में ले लें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज मैनी क्वेरीज आर इन द चैट बॉक्स आल्सो। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड था सर। एक काम करते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि मेरा टाइम है 6:30 बजे तक का है, तो कहीं ऐसा ना हो कि क्वेरी के चक्कर में और जो ना वो टॉपिक कंप्लीट होने से आपका रह जाए।
ठीक तो है सर, हम ठीक। एक काम कर सकते हैं सुमित, लेट मी कंप्लीट माय टॉपिक, और मैं ऐसा करता हूँ अभी कोई क्वेरी नहीं लेता, ठीक है? ठीक है और उसके बाद टाइम परमिटिंग तो हम क्वेरी को ले लेंगे, वरना एक दिन फिर बुला लेना आप मुझे। श्योर सर, श्योर। आपकी सभी क्वेरीज एड्रेस करने के नहीं लिए। नहीं, आपको तो दोबारा भी इनवाइट कर सकता हूँ सर। राइट, थैंक यू। नहीं नहीं, मैंने आपको कहा कि आपको जो, क्योंकि क्योंकि ना कुछ क्वेरी है, मैं 10 मिनट लास्ट में सरप्लस रखूंगा, सो डेट सारी क्वेरी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको फैक्ट बताऊं कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, इट्स सो सिंपल एंड सो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। आप सोचोगे वो क्या अजीब गरीब बात कर रहे हो, एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा सिंपल है, दूसरी तरफ बोल रहा हूँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको आ गया तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको नहीं आता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को लेके और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लेके, तो माइंड मत करना आप मेरी बात को कि आई विद माय फुल एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 90% टैक्स प्रोफेशनल्स को और मोर देन 90% टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की टैक्सेबिलिटी समझ में नहीं आती। ठीक है सर, बहुत थोड़े लोग हैं जिनको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की टैक्सेबिलिटी समझ में आती है, वो दोज हु आर एक्सपर्ट इन दिस, राइट? तो अगर समझ में आ जाए तो बड़ा सिंपल है, नहीं समझ में आए तो फिर सबके लिए एक रॉकेट साइंस है, क्योंकि नॉर्मल जैसे हम एक आम एसएससी की इनकम कंप्यूट करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर बहुत सर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके लिए अवेलेबल है विच यू कैन यूज। सर लास्ट में 10 मिनट्स ले लेंगे। एंड थैंक यू एवरी पार्टिसिपेंट। रितुन जी भी सिरसा से जुड़े हुए हैं, सिरसा चेयरमैन। एंड लास्ट के 10 मिनट्स में सारी क्वेरी ले लेंगे। आपने बड़ा अच्छा हॉट टॉपिक रखा है, और प्रोफेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम है, तो फिर आपके प्रोग्राम में तो आएंगे। मैं देख रहा हूँ कितने 197 लोग तो हो गए आपके प्रोग्राम में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। जी सर, ओवर टू यू सर। चलिए ठीक है सर। सेक्शन 11(1)A मैंने डिस्कशन कर लिया, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 11(1)D। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये जो एप्लीकेशन होना है आपका सेक्शन 11(1)A में, ये सारा आपका इंडिया में होना है, इंडिया से बाहर नहीं होना। अगर इंडिया से बाहर जाएंगे एप्लीकेशन करने के लिए, दैट विल नॉट बी अलाउड। इंडिया के बाहर अप्लाई करने के लिए आपको सेक्शन 11(1)C है, उसकी कंडीशन देख लीजिएगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल वेलफेयर से, बोर्ड की डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको इंटरनेशनल इंडिया से बाहर जाके आपको एप्लीकेशन अलाउ होगा। यानी चैरिटेबल एक्टिविटी की जितनी भी एप्लीकेशन है, इट शुड बी कन्फाइंड टू इंडिया ओनली, आप बाहर के लिए नहीं कर सकते। अब लेकिन एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, उसमें बातों बातों में मेरे दिमाग में आ गया कि एक बच्चा है, अब उसे फॉरेन पढ़ने के लिए जाना है ना, और एक चैरिटेबल सोसाइटी ने उस बच्चे को यहाँ पर इंडिया में स्पॉन्सर कर दिया, तो दैट विल बी माय एप्लीकेशन इन इंडिया, बेशक उसकी फीस बाहर जा रही है। इट्स नॉट एन एप्लीकेशन आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका जो बेनिफिशियरी है वो स्टूडेंट है इंडिया का, राइट? इन द सेम मैनर कोई अगर किसी पेशेंट को मैंने मेडिकल के इलाज के लिए स्पॉन्सर कर दिया, उसने सिंगापुर जाके अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया और अपने इंडिया के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में उसको स्पॉन्सर कर दिया, तो दैट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु इज इन इंडिया। नेक्स्ट, सेक्शन 11(1)D। सेक्शन 11(1)D कहता है कि जो आपको कॉर्पस डोनेशन मिलेगी, चंदा मिलेगा विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉर्पस, तो वो आपकी इनकम में काउंट नहीं। अब ये क्यों लाया ऐसा प्रोविजन? देखिए, आम तौर पे क्या है कि जो चंदा है बेसिकली इट्स ए कैपिटल रिसीट। अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो आप देखेंगे देयर इज नो इनकम कंपोनेंट, इनकम का कोई मतलब नहीं है हमारे पास जो चंदा है वो दान की फॉर्म में है, इट्स ए कैपिटल रिसीट, और जो हम आगे किसी की मदद कर रहे हैं दैट इज आल्सो अ कैपिटल पेमेंट, राइट? तो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इनकम एज सच देयर है। तो हमने क्या किया, डीलिंग फिक्शन क्रिएट करके उसको टैक्सेबल कर लिया। अब सपोज करिए कि मैंने एक एडवेंचर किया कि मैंने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाया, आई वांट टू ओपन ए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल मुझे बनाना है, और हॉस्पिटल बनाने के लिए मेरा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है 200 करोड़ रुपए का, राइट? अब 200 करोड़ रुपए मुझे पहले दिन तो डोनेशन नहीं आएगा, राइट? अब पहले दिन से अगर मैंने डोनेशन लेना शुरू किया और उन्होंने, सामने वाले ने मुझे कहा कि साहब आपको ये बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दे रहा हूँ, या किसी से मैंने कहा कि साहब एक कमरा आपकी तरफ से बनाना है, या ये एक्सरे मशीन आपकी तरफ से आनी है, या ये CT स्कैन की मशीन आपकी तरफ से आनी है, राइट? तो अब उसने उसका मुझे कॉर्पस डोनेशन दिया कि दिस इज फॉर ईयर मार्क फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग फंड, दिस इज ईयर मार्क फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्पस, या अदरवाइज उसने कहा कि आप इसको कॉर्पस में बना के रखिए। तो अगर कॉर्पस को डोनेशन दिए तो उन्होंने इस बात को समझा
कि कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में देयर में भी ए जेस्टेशन पीरियड, और जिस समय आपने डोनेशन लिया उसके बाद एप्लीकेशन में देयर में भी गैप। अगर मुझे 200 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है तो आप ये भी मान के चलिए कि 200 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आई विल रिक्वायर एटलीस्ट 3 to 4 years। ये एक साल में खर्च भी नहीं हो सकते। ठीक है सर, दिस इज अ बैकग्राउंड जिससे मैं आपको सेक्शन 11(2) समझाऊंगा कि 11(2) क्यों आया। ठीक है, तो कॉर्पस डोनेशन को इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया, ये आपकी इनकम में काउंट नहीं है। अगर जो डोनर ने आपको लिख के दिया है कि दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉर्पस, या उसने लिख के दिया है दिस इज फॉर बिल्डिंग फंड, या दिस इज फॉर एक्सरे मशीन, वट एवर मे बी एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाए कि कॉर्पस डोनेशन क्या होती है। सिंपल कॉर्पस डोनेशन भी हो सकती है और किसी नॉमेनक्लेचर के साथ भी हो सकती है कि वो पैसा किस लिए दिया है। डोनर ने पहले दिन स्पेसिफाई कर दी अपनी इंटेंशन, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इस पैसे को इस तरीके से यूज करेगी। ठीक है, यही तो बात करते करते मैं एक और बात करता हूँ। कई बार बहुत सारी ग्रांट हमें ऐसी होती है, सपोज करिए कि सुमित गर्ग ने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोला और मैंने सुमित गर्ग को 10 लाख रुपए दिए, और मैंने 10 लाख रुपए दिए कि भैया आप एक काम करिए, इस 10 लाख रुपए से आप कोवैक्सीन के इंजेक्शन लगवा दीजिए। ठीक है, और ये 10 लाख रुपए आप रख लीजिए और जितने कोवैक्सीन के इंजेक्शन लग जाए फलां तारीख तक उतने आप इसको यूज कर लीजिएगा, बाद में ये पैसे आप मुझे वापस कर दीजिएगा, जितने बचेंगे पैसे मेरे। तो यहाँ पर मैंने पैसा ट्रांसफर नहीं किया, दिस इज नॉट डोनेशन। यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, ट्रस्ट के पास उस पैसे को यूज करने का कंडीशनल लगी हुई है, तो उस ट्रस्ट के लिए पैसा डोनेशन में नहीं जाएगा, वहां पर ये लाइबिलिटी में जाएगा। वहां पर वो मेरे नाम की पैसा जमा करेगा, और जब जितना जितना मैं इसकी कोवैक्सीन ये सुमित गर्ग खरीदते जाएंगे उतने पैसे को अपनी इनकम में डोनेशन में ट्रांसफर करते जाएंगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबको। अब हम आगे चलते हैं सर। अब इसका एक्सप्लेनेशन आ गया सेक्शन 11(1) में, टोटल 5 एक्सप्लेनेशन और पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सप्लेनेशन, अगर किसी साल में, अब मुझे 31 मार्च को सुमित गर्ग ने डोनेशन का चेक दिया, 31 मार्च तक तो किसी कीमत पर मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। और सपोज करिए कि इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, एफडीआर का इंटरेस्ट, अगर मैं एक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, दैट इंटरेस्ट विल बिकम माय इनकम, लेकिन ये इनकम मुझे रिसीव नहीं। व्हेन अमाउंट ऑफ डोनेशन और अमाउंट ऑफ इनकम विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, और मुझे इनकम में दिखानी है उसको, बट आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू मेक एप्लीकेशन, क्योंकि पैसा मेरे डिस्पोजल पे आया नहीं। बात समझ में आ गई? तो सेक्शन 11(1) में मुझे एक छूट देती है कि 2 सिचुएशन में, या तो आपको इनकम मिली नहीं इस वजह से आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए, या इनकम मिली और किसी भी कारण से आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए और आपको पूरी उम्मीद है कि आप उसको अगले साल अप्लाई कर दो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मिली। सपोज करिए ये चेक जो सुमित गर्ग ने मुझे दिया, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है, इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, 29 मार्च को मेरे पास बैंक में आ गया, और 29 मार्च तक मुझे मालूम भी नहीं था कि सुमित गर्ग मुझे डोनेशन देंगे। तो उसके अगेंस्ट अब मैंने उसको पैसे को जो खर्च करना है, मैंने उसका ना तो खर्चा प्लान किया, क्योंकि मेरे पास जब पैसा नहीं है तो मैं खर्चा कैसे प्लान करूंगा। आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई। तो 2 रीजन हो गए कि मेरे को पैसा मिला नहीं, नंबर 1, एंड सेकंड फॉर एनी अदर रीजन। ये एनी अदर रीजन हो गया कि पैसा तो आ गया मेरे पास, बट देयर वाज नो टाइम अवेलेबल टू मी टू मेक एप्लीकेशन, और किसी भी कारण से मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। तब आपको यहां पर रूल 17(1), लीड विद रूल 71 फॉर्म 9A, ये आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को फाइल करना है कि साहब ये इतना पैसा है जो मुझे इस साल में मेरी इनकम में आया और जिसको मैं अप्लाई नहीं कर पाया, और ये मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर दूंगा। तो अगर किसी कारण से ये पैसा मैंने रिसीव नहीं किया, तो जिस साल ये पैसा मैं रिसीव करूंगा ये मेरा उससे अगले साल में जाके मेरी इनकम में काउंट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि ये मैंने फॉर्म 9 में फाइल कर दिया। क्लियर? और पैसा मेरे पास आ गया और मैं किसी कारण से उसको अप्लाई नहीं कर पाया और मैंने फॉर्म 9 में फाइल कर दिया, तो ये मेरा नेक्स्ट ईयर की इनकम में चला जाएगा और इस ईयर की इनकम में काउंट नहीं होगा। क्लियर? ये हो गया एक्सप्लेनेशन 1, जिसमें आपको फॉर्म 9A भरना है। और ये जो फॉर्म 9A भरना है आपको, ये रिटर्न फाइल की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले भरना है और अपनी रिटर्न भरने से पहले भरना है। ये क्वेश्चन है इसका, ये ध्यान रखने की जरूरत है
ये फॉर्म 9 है, आपको पहले। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन 2। आपके पास यदि कोई आपने एक्यूमुलेट कर ली इनकम, तो जो इनकम आपने एक्यूमुलेट कर ली उसमें से आप कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते। आप किसी दूसरी संस्था को कॉर्पस डोनेशन करने के लिए अप्लाई करके उसका खर्चा, उसका एप्लीकेशन आपको अलाउ नहीं होगा। Whatever income you have set apart or accumulated, जो आपने अप्लाई कर दिया, बात खत्म होगी। आपने एक्यूमुलेट कर लिया तो उस एक्यूमुलेशन से आप कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते। अब कॉर्पस डोनेशन का खेल होता है, बड़ा अच्छा सिंपल खेल है। एक ट्रस्ट मेरे पास है, ठीक है, अब मैं अप्लाई नहीं कर पाया 85%। एक ट्रस्ट सुमित के पास है, सुमित भी अप्लाई नहीं कर पाया 85%। अब सुमित ने मुझे कॉर्पस डोनेशन दे दी और मैंने सुमित को कॉर्पस डोनेशन दे दी। बात समझ में आ गई? तो सुमित का भी अप्लाई हो गया और मेरा भी अप्लाई हो गया और कॉर्पस में दोनों के हैंड में आके एग्जेम्प्ट हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस टैक्स प्लानिंग को अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए, ये इसमें सेक्शन 11(1) का एक्सप्लेनेशन नंबर 2। फिर आए हम एक्सप्लेनेशन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में कहते हैं कि जो 40A है, जो नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस की वजह से आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। आप यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, आप टीडीएस काटना भूल गए, तो क्या करते हैं 40A में आपकी डिसअलाउंस हो जाती है और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। और 40A3 में यू आर रिक्वायर्ड, यू कैन नॉट मेक पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रुपीज इन कैश। ठीक है सर? तो वो कहा कि 40A3 और 40A के जो प्रोविजंस हैं दैट विल मुतंडिस अप्लाई टू सेक्शन 11(1), यानी कि 11(1) की जो आपकी एप्लीकेशन है, wherever the trust is required to deduct TDS, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको एप्लीकेशन अलाउड नहीं होगी, वो आपका ऐड हो जाएगा, राइट। और जहां आपने 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट कर दी, दैट विल ऑल्सो बी डिसअलाउड, वो आपको एप्लीकेशन उसको अलाउड नहीं होगा। क्लियर? अब आता है एक्सप्लेनेशन 4। तो ये जो एक्सप्लेनेशन 4 है, this explanation 4 is applicable from 1st April 2020। ये अभी आया है, इस साल से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है। अब 1 अप्रैल 2021 के बाद से अगर मुझे कोई कॉर्पस डोनेशन मिला, राइट, अब एक एग्जांपल से बात को समझते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए का कॉर्पस डोनेशन मिला, तो मुझे क्या करना था, उस कॉर्पस डोनेशन को बिल्डिंग बनाने के लिए, और मैंने उस कॉर्पस डोनेशन से बिल्डिंग बना दी। अब बात को समझने की कोशिश करिए। 50 लाख रुपए की मुझे कॉर्पस डोनेशन मिली और उस 50 लाख रुपए मैंने बिल्डिंग के ऊपर खर्च कर दिया। अब मुझे 60 लाख रुपए की नॉर्मल डोनेशन मिली अदर देन कॉर्पस डोनेशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, और बिल्डिंग बनाने के अलावा मैंने पूरे साल में कोई और काम नहीं किया। तो मैंने क्या किया कि इधर तो मेरी 50 लाख रुपए, क्योंकि कॉर्पस फंड आया था 11(1)D में, वो मेरा एग्जम्प्ट है, राइट। और ये जो 50 लाख रुपए की मैंने बिल्डिंग बनाई, ये 50 लाख रुपए मैंने 60 लाख रुपए के वॉलंटरी के कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट एप्लीकेशन क्लेम कर दिया। बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने क्या किया कि खर्चा तो किया 50 लाख रुपए, और एग्जेम्पशन कितने की क्लेम करी, 50 लाख रुपए कैपिटल कॉर्पस डोनेशन की, और 50 लाख रुपए जो मैंने 60 लाख रुपए में से खर्च कर दिए उसकी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैंने 1 करोड़ रुपए की एग्जेम्पशन ले ली और एप्लीकेशन मैंने कितना किया, 50 लाख रुपए। ठीक है सर? अब इन्होंने इसको प्लग कर दिया 1 अप्रैल से कि अब आप ये नहीं कर सकते। अगर आपने कॉर्पस डोनेशन ली है और उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है, तो दैट विल नॉट बी अलाउड एज एप्लीकेशन। उसको आप एप्लीकेशन की जगह 11(1)A में जाके बाकी डोनेशन के अगेंस्ट उसको एप्लीकेशन क्लेम आप नहीं कर सकते। यानी कि जो बिल्डिंग के लिए मैंने 50 लाख रुपए खर्च करे थे, वो मैं अब अदर डोनेशन के अगेंस्ट एप्लीकेशन क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर? अब इन्होंने क्या कहा, अब सपोज करिए इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने 50 लाख रुपए कॉर्पस डोनेशन आई,
50 लाख रुपए मैंने बिल्डिंग में खर्च कर दिए। ठीक है, अब 60 लाख रुपए की मेरे पास फिर दोबारा से डोनेशन आ गई, जिसके आगे सभी कोई खर्चा नहीं। अब मेरे पास कैपिटल डोनेशन पहले आ गई और कैपिटल डोनेशन से मैंने बिल्डिंग बना दी। उसके बाद मेरे पास 60 लाख रुपए की जनरल डोनेशन आ गई। अब मैंने कहा कि जो कॉर्पस मेरे पास 50 लाख रुपए आया था, ये मुझे संभाल के रखना था, क्योंकि ये मेरी कॉर्पस डोनेशन है, राइट। अब मैंने 60 लाख रुपए के डोनेशन में से 50 लाख रुपए की एफडी बना दी टू रिप्लेनिश माई कॉर्पस, टू रीबिल्ड माई कॉर्पस। बात समझ में आ गई? तो जैसी ये 50 लाख रुपए की मैं एफडी कराऊंगा, देन दिस 50 लाख रुपीज विल बी अलाउड एज एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? पहले मैंने कॉर्पस से खर्चा कर दिया, अब मेरे पास कॉर्पस के सामने मेरे पास कैश इक्विवेलेंट नहीं है, राइट। एफडी नहीं है कॉर्पस के सामने मेरे पास, तो अब मैंने उस कॉर्पस फंड को रिप्लेनिश करने के लिए उस कॉर्पस के इक्विवेलेंट एफडी क्रिएट कर दी। तो जिस दिन मैं उसकी एफडी क्रिएट करूंगा कॉर्पस के लिए, उस दिन वो मुझे एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगा। ये बोलता है एक्सप्लेनेशन नंबर 4। सेम रूल अप्लाई होगा अगर मैंने लोन लिया। अब सपोज कहिए मैंने कार लोन ले लिया और कार खरीद ली, तो जिससे मैं कार लोन लिया और उससे जो कार खरीदी मैंने, जो कार की कॉस्ट है, जो मान लिया सपोज कीजिए मुझे स्कूल की बस खरीदनी है, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस खरीदनी है, और उसके आगे मैंने लोन ले लिया, राइट। अब जब मैंने एम्बुलेंस आई मेरी 15 लाख रुपए की, लोन मिला मुझे 12 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए मैंने अपनी पॉकेट से दिए और 12 लाख रुपए मेरे पास लोन से आए, तो ये 3 लाख रुपए तो मुझे एप्लीकेशन अलाउ होगा, ये 12 लाख रुपए मुझे एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगा। प्रीवियसली ये 12 लाख रुपए मुझे एप्लीकेशन अलाउ हो रहे थे, 1 अप्रैल 2021 से ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगा। लेकिन जब मैं रीपेमेंट ऑफ लोन करूंगा या उस लोन का इंटरेस्ट दूंगा, दैट विल बी अलाउड एज एप्लीकेशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट भी हमारा अलाउ होगा और रीपेमेंट ऑफ लोन भी अलाउ। फिर आ गया एक्सप्लेनेशन 5, ये भी एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2021 से। ये जो एक्सप्लेनेशन 5 है, मैं देख रहा हूँ सर बोल मैं रहा हूँ, पानी मेरे साथ वाले लोग पी रहे हैं, साहब इमाम साहब पानी पी रहे हैं, बोल मैं रहा हूँ, गला मेरा सूखना चाहिए। चलिए खैर, एक्सप्लेनेशन 5। अब पहले क्या था कि सपोज करिए कि मेरे पास कॉर्पस डोनेशन है और मेरे पास पैसे बचे हुए हैं पुराने एक्यूमुलेटेड। इस साल, पिछले साल में मेरी जो ग्रॉस रिसीट थी वो सपोज करिए थी 50 लाख रुपए, और मेरा एप्लीकेशन हो गया 60 लाख रुपए, यानी कि मेरी जो ट्रस्ट की इनकम थी वो 10 लाख रुपए शॉर्टफॉल थी और एप्लीकेशन पिछले साल में मेरा ज्यादा हो गया था। तो देयर वर नंबर ऑफ केसेस जिन्होंने कहा कि जो पुराने साल में जो एक्सेस एप्लीकेशन हो गया, तो मैं करंट ईयर के एप्लीकेशन में उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, उसका सेट ऑफ ले लेता हूँ, यानी कि उसको रिप्लेनिश कर सकता हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक्सेस एप्लीकेशन मैं करंट ईयर में उसको रिप्लेनिश करता हूं, तो उसका मुझे एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगा, उसका सेट ऑफ अलाउ हो जाएगा। देयर वर नंबर ऑफ कोर्ट डिसीजन ऑन दिस। तो ये अब उन्होंने बंद कर दिया सर, 1 अप्रैल 2021 से पिछले साल का एक्सेस एप्लीकेशन का आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अब ये हमारा पूरा हो गया सेक्शन 11(1). नाउ वी मूव टू सेक्शन 11(1). अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हेड्स ऑफ इनकम नहीं चलेंगे, ट्रस्ट के अंदर हेड्स ऑफ इनकम नहीं चलेंगे। ठीक है, और फिर मैंने आपको पढ़वाया सेक्शन 224 का क्लॉज नंबर 6, उसमें लिखा था कैपिटल गेन एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 45, वो ट्रस्ट की इनकम होगी, तो फिर वो कहाँ टैक्सेबल होगी अगर उस हेड में नहीं जाएगी तो। गॉट इट? दैट इज द पॉइंट। बात समझ में आ गई? हमने कहा ट्रस्ट की जो कैपिटल गेन की इनकम होगी दैट विल बी टैक्सेबल इनकम, और हमने कहा कि वो हेड में नहीं जाएगी, तो फिर वो कहां पर जाएगी? वो आएगी सेक्शन 11(1)(a) में। सेक्शन 11(1)(a) में कहा कि जो कैपिटल, देखो अदरवाइज मैं आपको बताऊं, ये कैपिटल गेन का जो चैप्टर है इट्स ए कंप्लीट डीलिंग फिक्शन। कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल पेमेंट, राइट। और कैपिटल रिसीट का मतलब होता है विच इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, जो टैक्सेबल नहीं है। तो हमने सेक्शन 45 में एक डीलिंग फिक्शन क्रिएट की जिसमें कैपिटल रिसीट को हमने टैक्सेबल बना दिया, राइट। तो उस डीमिंग फिक्शन को हमने ट्रस्ट के अंदर कंप्यूट एक्सटेंड कर दिया।
उस डीमिंग फिक्शन को हमने अब ट्रस्ट के अंदर एक्सटेंड कर दिया कि जो ट्रस्ट की कैपिटल गेन होगा दैट विल बी चार्ज टू टैक्स, वो इनकम ट्रीट होगी एज पर सेक्शन 11(1)(a). अब कैपिटल एसेट ट्रस्ट की कौन सी होगी? विच इज हेल्ड अगेंस्ट कॉर्पस, जिसको आप एप्लीकेशन में क्लेम कर चुके, वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। बात समझ में आ गई? जो आपकी कॉर्पस के सामने, जिसका आपने एप्लीकेशन क्लेम नहीं किया है, जो कॉर्पस के सामने आपकी एसेट खड़ी है, दैट विल बिकम योर कैपिटल एसेट। तो जब आप उस कैपिटल एसेट को बेचोगे और उससे जो पैसे आएंगे, अगर आपने सारे के सारे पैसे से एक नई कैपिटल एसेट खरीदी ट्रस्ट के कॉर्पस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है सर, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन एक्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपने मेरी बुक्स में एक एसेट खड़ी थी, एग्जांपल से बात को समझते हैं, उसकी कॉस्ट थी सपोज करिए 4 लाख रुपए। मेरी बुक्स में एक एसेट खड़ी थी, 4 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी, और वो मैंने 10 लाख रुपए की बेच दी। अब मैंने 11 लाख रुपए की एक नई एसेट खरीदी, ठीक है, तो यहां मेरा पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जाम्पल। बात समझ में? यानी कि कॉस्ट जो मेरी सेल कंसिडरेशन है, अगर वो मैंने पूरी की पूरी अप्लाई कर दी, अगर मैंने 10 लाख की भी खरीद ली, तो मेरा पूरा कैपिटल गेन एग्जाम्पल हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि अगर आपने पूरी सेल कंसिडरेशन अप्लाई नहीं की, अगर आपने पार्ट कंसिडरेशन अप्लाई करी है, अगर आपने पार्ट कंसिडरेशन अप्लाई की है, तो जो आपका कैपिटल गेन होगा दैट विल बी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। अब इसी एग्जांपल को हमने कंटिन्यू करते हैं कि 4 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट थी, 10 लाख रुपए की मैंने सेल कर दी, राइट। अब सपोज करिए मैंने 8 लाख रुपए की न्यू एसेट खरीदी, 8 लाख रुपए की मैंने न्यू एसेट खरीदी है 10 लाख, तो मेरा कैपिटल गेन कितना है? 6 लाख रुपए। अभी मैंने इंडेक्सेशन नहीं लगाया, इंडेक्सेशन का पॉइंट समझेंगे, अभी प्लेन एग्जांपल से आपको समझाने के लिए बोलते हैं। 4 लाख रुपए की मैंने एसेट खरीदी, 10 लाख रुपए की मैंने एसेट बेची, ठीक है सर, और 8 लाख रुपए की मैंने नई एसेट खरीदी। क्लियर हो गया ना? कोई एग्जांपल में किसी डाउट नहीं ना? अब यहाँ पर गेन कितना आया मुझे? 6 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की बेची, 4 लाख रुपए की खरीदी थी, गेन कितना आया? 6 लाख रुपए। अब एग्जाम्प्ट कितना होगा मेरा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लेस कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। मेरी जो न्यू एसेट है उसकी कॉस्ट क्या है? 8 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड कितना है मेरा? 4 लाख रुपए। तो मेरा 4 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा 6 लाख में से, 2 लाख रुपए के ऊपर मुझे टैक्स। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से सेक्शन 11(1)(a) में कैपिटल गेन चार्ज, सेक्शन 45 में डिक्लेयर नहीं होगा, वो जाके कैपिटल गेन के शेड्यूल में जाके डिक्लेयर नहीं होगा। आप कंफ्यूज नहीं होना कि जाके मुझे अभी इसकी और डिडक्शन क्लेम करनी है, वहां पे जाके 54 क्लेम करूंगा, ट्रस्ट को नहीं मिलती 54 है, कुछ नहीं मिलेगा ट्रस्ट को, 54 EC भी नहीं मिलेगा, राइट, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। ये सीधा सीधा आपका इस डीमिंग फिक्शन में सेक्शन 11(1)(a) में ये आपका कैपिटल गेन इस तरीके से टैक्सेबल होगा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, इफ यू वांट टू क्लेम बेनिफिट, कि मैं कहता हूँ कि साहब मैं जो कॉस्ट ऑफ एसेट है ना अपनी, जो कैपिटल गेन कंप्यूट करूंगा, यहाँ पर मैं कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहा था 6 लाख रुपए। मैंने कहा 10 लाख रुपए में मैंने बेचा, 4 लाख रुपए का मैंने मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट की, तो मेरा कैपिटल गेन कितना हो गया? 6 लाख रुपए। अब मैं कहता हूँ मैं इंडेक्सेशन लेता हूँ सेक्शन 48 में इसका 4 लाख का, अब मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई 9 लाख रुपए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई मेरी 9 लाख रुपए, ठीक है। अब मेरा कैपिटल गेन कितना हो गया? 1 लाख रुपए। गॉट इट? और एग्जाम्प्ट कितना है? 2 लाख रुपए। एम आई रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स? ठीक है सर। अब रिटर्न में आप इसको कैसे भरोगे, ये आपका काम है, मैं आपको लॉ बता रहा हूं।
आपको रिटर्न में कैसे भरना है आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। ITR 7 आपको किस तरीके से रिटर्न भरने देगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वेदर दिस इंडेक्सेशन कैन बी क्लेम्ड, द आंसर इज यस, क्योंकि सेक्शन 224 में क्लॉज 6 में उसने लिखा है कैपिटल गेन एज पर स्कीम ऑफ सेक्शन 45। सेक्शन 45 में लिखा है कि आपको इंडेक्सेशन कॉस्ट मिलेगी। बात समझ में आ गई? ये आपका कैपिटल गेन पूरा होगा। अब एक इसमें बड़े मजे की चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, और मैं समझता हूं कि आप सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी ये सुन के। अगर आपने कॉर्पस फंड की कैपिटल एसेट को बेच लिया और आप एक नई एसेट नहीं खरीद पाए, और अगर आपने पूरी कंसिडरेशन की FDR करा दी, योर एंटायर कैपिटल गेन विल बी एग्जेप्ट। ये आप नोट कर लीजिए, सर्कुलर नंबर 180 25 सितंबर 1975 ये CBDT का सर्कुलर है, उन्होंने आपको एग्जेम्पशन दी है। यानी कि कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपकी कोई भी कैपिटल एसेट बिकी, आप एसेट नहीं खरीद पाए, आप उसकी FD करा दीजिए, और आप जैसे ही उसकी FD कराएंगे वो 11(1)(a) के स्कोप से बाहर चली जाएगी और आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्सेबल कंप्यूट नहीं होगा। ठीक है जी। अब मैं बात कर रहा था एक्यूमुलेशन की। अभी जब हमने बात करी एक्सप्लेनेशन 1 में 9A की बात करी, फॉर्म 9A की, तो वो हमें 1 साल के लिए एक्यूमुलेट करता है कि पहले साल में पैसा नहीं मिल पाया या हम खर्च नहीं कर पाए तो अगले साल जाके आप उसको खर्च करते हैं। एज सिंपल एज दिस। अब सपोज करिए मैंने शुरू में एग्जांपल से शुरू किया था कि मुझे एक 200 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है ना, 200 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है। अब 200 करोड़ रुपए का चंदा मुझे एक दिन में तो मिलेगा नहीं। अच्छा, अब 200 करोड़ की अगर मेरी बिल्डिंग का प्लान है तो एटलीस्ट कम से कम जब तक मेरे पास 50-60 करोड़ रुपए नहीं आ जाएंगे तब तक मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू नहीं करूंगा, राइट? क्योंकि मेरे पास इतना कमिटमेंट करने के लिए मेरे पास इतना बैकअप पैसा होना चाहिए ना। ओनली देन आई विल बी एबल टू मेक कमिटमेंट कि भाई 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैं तभी उठाऊंगा ना जब मेरे पास 40-50 करोड़ रुपए की कहे तो कमिटमेंट आ जाए या मेरे पास फंड्स आ जाए और मैं आर्किटेक्ट को भी पैसा दे सकूं और मोबिलाइजेशन फीस भी दे सकूं, है ना। 200 करोड़ रुपए का अगर मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड करना है तो पहले दिन तो मुझे 200 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा नहीं होगा। गॉट इट? तो यहाँ पर उन्होंने आपको 11(2) में दे दिया कि आप एक काम करिए, आपने अगर चंदा लिया अदर देन कॉर्पस डोनेशन, अदर देन कॉर्पस डोनेशन आपके पास चंदा आ गया, कॉर्पस डोनेशन तो आपको 11(1)(d) में एग्जाम्प्ट है। अदर देन कॉर्पस डोनेशन यदि आपके पास चंदा आ गया तो उस चंदे को एक्यूमुलेट करने के लिए 5 साल के लिए आप 11(2) के अंदर एक फॉर्म भर दीजिए। उस फॉर्म का नंबर है फॉर्म 10, और उसमें आप लिख के बता दीजिए कि ये मुझे अपने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है और ये पैसा जो मेरे को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आया है और ये जो मेरे ट्रस्ट की इनकम आई है ये मैं अगले 5 सालों के लिए एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हॉस्पिटल बिल्डिंग, और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हॉस्पिटल बिल्डिंग, और फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग लैब, और फॉर द वट एवर मे बी द पर्पस। या मुझे मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनाना है। अब राम मंदिर के पास इतना डोनेशन आ गया, अब राम मंदिर के सारे पैसे तो आज जितना डोनेशन आ गया एक दिन में खर्च नहीं होंगे ना। व्हाट दे विल डू, वो 11(2) में जाएंगे, या तो कॉर्पस डोनेशन लेंगे, और कॉर्पस डोनेशन के अलावा अगर उनके पास वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आ गया तो वो 11(2) में जाएंगे, फॉर्म 10 फाइल करेंगे और 5 साल के लिए इस पैसे को एक्यूमुलेट कर लेंगे। तब उनको लिबर्टी मिल जाएगी और वो बिल्डिंग बनाने के लिए 5 साल तक इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। ठीक है सर। अगर 5 साल तक ये पैसा खर्च नहीं कर पाए तो छठे साल ये इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को चेंज करा सकते हैं, वो पावर है असेसिंग ऑफिसर के पास। सपोज करिए आज मुझे बनानी थी बिल्डिंग और कल मुझे लेना पड़ रहा है कि नहीं साहब मुझे तो अब OT बनाना है, ऑपरेशन थिएटर की मशीनें लेनी है और बिल्डिंग मुझे फर्दर एक्सपेंड नहीं करनी, तो आपको फॉर्म 10 में आप लिख के दे चुके हो कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो जो आप फॉर्म 10 में लिख के दे चुके हैं आपको उसी पर्पस के लिए इस पैसे को यूज करना पड़ेगा। दूसरे पैसे के लिए, दूसरे पर्पस के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपको उसको ऑब्जेक्ट चेंज कराना है तो आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा और उसको 11(2) में जाके आपको आपके ऑब्जेक्ट को वो चेंज करेगा, अप्लाई करना परमिट करेगा, तब आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, राइट। ये हमारा 11(2) पूरा हो गया। 11(2) में यदि हम एक्यूमुलेट करते हैं तो सेक्शन 11(5) में मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखे हैं कि जब भी हमने पैसा किया तो आप ऐसा नहीं है कि आपने किसी को उठा के लोन दे दिया, यू कैन डू दैट। आपके पास डोनेशन आ गई, आपने 11(2) का एक्यूमुलेशन कर लिया
कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए आ गए, 200 करोड़ रुपए का मेरा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, तो 50 करोड़ रुपए यदि मेरे पास संस्था के पास आ गए तो मैंने कहा चलो भाई सुमित गर्ग को लोन दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। सुमित गर्ग के पास आजकल शॉर्टेज है, सुमित गर्ग बोले भाई मैं आपको ना ब्याज के बाजार में इंटरेस्ट का रेट 10% चल रहा है, मैं आपको 15% दे दूंगा। तो ट्रस्ट इज नॉट परमिटेड टू लेंड दैट मनी टू एनीबडी एल्स। आपके मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सेक्शन 11(5) में लिखे हैं। तो जो ट्रस्ट के पास पैसा है, जो 11(2) का एक्यूमुलेशन है, वो आपको उसी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में रखना पड़ेगा। अगर आप मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में रखेंगे तो आपकी पूरी की पूरी एग्जम्पशन जो आपने ली है वो आपकी चली जाएगी, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, राइट। तो मोस्ट कॉमन मोड इज एफडीआर, और वो सेक्शन 11(5) आप पढ़ लीजिएगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेक्शन 11(6) में कहते हैं कि जिस कैपिटल एसेट का आपने एप्लीकेशन क्लेम कर लिया है ना, तो उसका आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन आपको उसी एसेट का मिलेगा जिसका आपने एप्लीकेशन क्लेम नहीं किया, या फिर जो आपकी कॉर्पस फंड से खरीदी हुई एसेट है। बात समझ में आ गई? कॉर्पस फंड से खरीदी हुई जो एसेट है ये एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 15-16 से। और सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 अब ये कहता है कि जो ट्रस्ट है, जो जितने भी ये चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है, इनको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो या तो सेक्शन 11 में मिलेगी, या सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की मिलेगी एग्रीकल्चरल इनकम की, या सेक्शन 1023C की मिलेगी, या सेक्शन 1046 मिलेगी। इसके अलावा कोई और सेक्शन 10 की एग्जम्पशन आपको ट्रस्ट को नहीं मिलेगी। सेक्शन 10 में जितने भी सेक्शन हैं कोई भी इस ट्रस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा और किसी की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी अदर देन दीज एग्जम्पशन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम, सेक्शन 1023C, राइट, एंड सेक्शन 1046। और फिर साथ में एक और राइडर कर दिया, फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर ऑनवर्ड्स अब आप एक ही एग्जम्पशन ले पाएंगे, आप एक ही रजिस्ट्रेशन रख पाएंगे। या तो आप 1023C में चले जाएं या फिर आप सेक्शन 11 में आ जाएं, आप दोनों कैरी नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक साल तो आप 1023C में चले जाएं, दूसरे साल आप 11 में आ जाएं, फिर तीसरे साल आप फिर 23C में चले जाएं, फिर आप अगले साल फिर 11 में आ जाएं। पहले कर सकते थे ऐसा, अब ऐसा नहीं कर सकते। पहले जिस समय हम रिटर्न फाइल करते थे उस समय हमारी चॉइस थी कि हम सेक्शन 11 की एग्जम्पशन लें या सेक्शन 1023C की एग्जम्पशन लें, राइट। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वंस एन ऑप्शन इज एक्सरसाइज तो आपको परमानेंटली वही फॉलो करनी पड़ेगी, और आपका जो दूसरा रजिस्ट्रेशन है दूसरे सेक्शन का वो आपको अलाउड नहीं होगा। आप एक ही में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1023C के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि 1023C में अगर कोई स्कूल है, कोई एजुकेशन सोसाइटी है या कोई हॉस्पिटल है, तो उस सिचुएशन में जो पहले जो ग्रॉस रिसीट थी जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, दैट वाज 1 करोड़, और 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स वो हो गई हमारी 5 करोड़। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। मैंने आपको बताया था ना, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, जो मैंने कंडीशन बताई थी वो कंडीशन सारी पूरी होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सारी पूरी होगी तो आपको 1023C मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 में वो बात करता है इनकम फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। वो कहते हैं ये सब आपकी इनकम बन जाएगी। सेक्शन 224(2) जो हमने पढ़ा वो यहाँ पर उन्होंने रिपीट कर दिया कि जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सेक्शन 12A ये कहता है कि सेक्शन 11 से 13 की एग्जम्पशन आपको तब मिलेगी व्हेन यू आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A। अगर आपने 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलाया तो आपको सेक्शन 11 to 13 के प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, और ये जो छूट मिली है, ये जो स्पेशल प्रोसीजर मिला है, ये आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ से 2 कैटेगरी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गई, एक हो गई अनरजिस्टर्ड और दूसरा हो गया रजिस्टर्ड। जो 12A में रजिस्टर्ड होंगे उनकी कंप्यूटेशन जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं इस तरीके से कंप्यूट होगी, ठीक है। अब रह गए अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं 1023C वाले, जिनकी जो हॉस्पिटल है और एजुकेशनल सोसाइटीज हैं जिनकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए से कम है, ठीक है सर, उनके 1023C के हिसाब से उनकी इनकम कंप्यूट होगी।
और अदर देन दोस्त जितने भी मंदिर हैं और जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और जो आप गली मोहल्ले में कहीं भी बना के बैठे हैं, दे आर ऑल अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लियर है कि ये चैरिटेबल पर्पस है या रिलीजियस पर्पस है, ठीक है, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। और उनके लिए आपके पास जो ITR का फॉर्म है दैट इज ओनली फॉर्म नंबर 7। अगर कोई फॉर्म नंबर 5 में अगर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट भी अगर अपने रिटर्न भरता है, दैट इज इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। आप ITR 5 में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एवरी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4)A। अगर वो अनरजिस्टर्ड भी है तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्म बचता है और वो है ITR 7, और उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के हिसाब से उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी। लेकिन ऑफ लेट क्या होता है कि आप जितनी भी ट्रस्ट की आपने रिटर्न भरी इस तरीके से, तो व्हाट वी फाइंड कि वो उसके ऊपर MMR लगा के भेज देते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगा के भेज देते हैं, और आपको कोई डिडक्शन भी नहीं देते, राइट। तो ये जो ओपिनियन है डिपार्टमेंट का, दैट ओपिनियन इज रॉन्ग। और अभी एक रिसेंट मैंने एक जजमेंट एक केस आर्ग्यू किया था बिफोर ऑनरेबल दिल्ली ITAT, तो एक ये जजमेंट अभी लेटेस्ट आया है अभी मई के महीने में। यह है विद्या विहार शिक्षा समिति ITA नंबर 7641 दिल्ली 2019। विद्या विहार शिक्षा समिति, यहाँ पर ITAT ने हेल्ड किया है कि जो अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, ठीक है सर। उनके ऊपर आप मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स नहीं लगा सकते। अब उनकी जो इनकम कंप्यूट होगी वो नॉर्मल तरीके से कंप्यूट होगी कि जितनी आपके पास इनकम आई है उसको आप इनकम ले लीजिए, जितना आपने अप्लाई किया उसको आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर लीजिए, आपके पास नेट सरप्लस बचेगा, दैट विल बी योर इनकम। आपको कुछ एक्यूमुलेटेशन नहीं मिलेगा, आपको कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन का चक्कर नहीं है, सीधा सीधा रिसीट एंड पेमेंट। जितनी आपके पास रिसीट आई उसमें से आप जितना आपका एक्सपेंडिचर है वो आप रिड्यूस कर दीजिए, रिमेनिंग इज योर इनकम, और वो आपकी टोटल इनकम हेड्स ऑफ इनकम में जाएगी, क्योंकि आप इस हेडलेस इनकम में नहीं जाओगे, राइट। तो फिर आपकी जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें जाके वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ITR 7 का फॉर्म आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिक्लेयर नहीं करने देगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको फिर नेट इनकम जाके डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको एप्लीकेशन अलाउड नहीं करेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये मान के चल रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो अनरजिस्टर्ड मंदिर हैं, जिनका 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन सब के ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा और उनको बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी। आज का सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अब जो पुराना रिजीम था सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन का, ये कंडीशन कर दी कि 11-12 की आपको एग्जम्पशन तब मिलेगी जब आपने सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन कराया। इसके 2 सेक्शन थे, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज A। तो ये सेक्शन क्लॉज AA, ये सेक्शन आपका 31 मार्च तक एप्लीकेबल था, इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सेक्शन 1AB 12A1AB, ये सेक्शन जब आपका ऑब्जेक्ट लॉ आप चेंज करते हो, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल था। ये भी आपका इस साल से एप्लीकेबल नहीं है, 31 मार्च को उसकी एप्लीकेबिलिटी बंद हो गई। अब ये नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 12A सबसेक्शन 1AC, ये नया सेक्शन आ गया। और इस नए सेक्शन के हिसाब से नाउ एवरी ट्रस्ट, चाहे वो पुराने वाला ट्रस्ट था जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था या जो नया ट्रस्ट है, उन सबको इस नए रिजीम में जाके और सेक्शन 12AB में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेक्शन 12AA रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर था पुराने रिजीम के लिए, पुराना रिजीम 31 मार्च से बंद हो गया रजिस्ट्रेशन का। अब हमारे पास नया रिजीम आ गया, सेक्शन 12AB रीड विद सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC, राइट। तो जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको अब 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना है। और अब दोनों के लिए, ATG के लिए और 12A के लिए, दोनों के लिए एक ही फॉर्म बना दिया है, फॉर्म नंबर 10A और फॉर्म नंबर 10AB। जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड है उनके लिए फॉर्म नंबर 10 है, और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए फॉर्म नंबर 10AB। और ATG और 12A दोनों के लिए एक ही फॉर्म कर दिया है, क्लियर। अब यहां पर उन्होंने कहा कि आपको अगर एग्जिस्टिंग
रजिस्टर्ड हैं आप 12A के अंदर, पुराना आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, तो आपको सेक्शन 12AC में जाके 30 जून तक अपनी रजिस्ट्रेशन की नई एप्लीकेशन फाइल करनी है और आपको 5 साल के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और फिर जब आपका एक्सपायर होने वाला होगा 6 महीने पहले आपको रिन्यू कराना है, राइट। इसमें टोटल 6 क्लॉजेज हैं कि किस किसको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। क्लॉज नंबर 2 में रिन्यूअल के लिए है 3 महीने पहले। क्लॉज नंबर 3 में अगर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है तो जिस समय आपका एक्सपायर होने वाला हो या जिस समय आपने अपना काम शुरू कर दिया उसके 6 महीने पहले आप 6 महीने के पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें। और क्लॉज नंबर 4 है कमेंसमेंट। आपका अगर एक रजिस्ट्रेशन आपका 1023C का था और आपका कोई रजिस्ट्रेशन 11 में एग्जेम्पशन लेने की वजह से 1023C चला गया है या 1023C में जाने की वजह से 11 का रजिस्ट्रेशन चला गया है और दोबारा उस सेक्शन में लौटना चाहते हैं तो आप पुराने रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करके और नए रजिस्ट्रेशन में आएंगे, ठीक है सर। और क्लॉज नंबर 6 जो है वो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन होंगे। अब इस जो सेक्शन की लैंग्वेज है, पहले अभी तक हम क्या समझते आए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कब से मिलेगा, जिस साल से आपने अप्लाई कर दिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका असेसमेंट ईयर है उस साल से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सपोज कीजिए अगर मैंने 31 मार्च 2021 को मैंने अप्लाई किया तो असेसमेंट ईयर 21-22 से मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? बड़ा क्लियर है ना। यानी कि 31 मार्च 21 को मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया, दैट विल अप्लाई फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 और 20-21 फाइनेंशियल की जो मेरी इनकम है वो पूरी की पूरी मेरी सेक्शन 11 से 13 की मैं एग्जेम्पशन क्लेम करूंगा। लेकिन अब जो इन्होंने कहा कि जिस असेसमेंट ईयर की मुझे एग्जेम्पशन लेनी है उसका जो प्रीवियस है ईयर है, उस प्रीवियस ईयर के शुरू होने से 1 महीने पहले मुझे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। अब ये लैंग्वेज पढ़ के मैं घूम गया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी लैंग्वेज नहीं पढ़ी। यानी जिस साल का मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, अब सपोज करिए कि अगर मुझे असेसमेंट ईयर 22-23 का रजिस्ट्रेशन लेना है, असेसमेंट ईयर 22-23 का रजिस्ट्रेशन लेना है और जब क्लॉज 6 की आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन मुझे 28 फरवरी 2021 से पहले अप्लाई करना था। कुछ बात समझ में आई? यानी कि आज की डेट में यदि मैं कोई नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करूंगा तो वो एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, और असेसमेंट ईयर जो 22-23 है उसका रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं मिलेगा। अब इसका जो फॉर्म आएगा वो मुझे 22-23 के एग्जेम्पशन लेने के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता, लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब प्रोविजन है। अब मैंने आज संस्था बनाई, सपोज कीजिए आज की डेट में एक नई ट्रस्ट फॉर्म करता हूँ। I had no occasion to obtain registration prior to 28 February 2021। आज की डेट में मैंने नई संस्था बनाई है। अब जब मैंने नई संस्था बनाई तो मैं नेचुरली आज ही अप्लाई करूंगा उसका रजिस्ट्रेशन। अब ये जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ये रजिस्ट्रेशन मुझे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए मिलेगा। यानी जो इस साल की मेरी करंट ईयर की इनकम है ना, इसके लिए मुझे सेक्शन 11, 12, 13 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई सर? ये इसमें एक बहुत बड़ा लोचा है। अब ये गलती से ड्राफ्टिंग हो गई है या एक्चुअल में इसकी ड्राफ्टिंग है, यही है मतलब इसका ये निकलता है। अब जब फॉर्म नंबर 10 है, अभी पोर्टल बंद पड़ा है इनकम टैक्स का एक्ट का, अब 30 जून की टाइम भी निकलने वाला है, 30 जून का टाइम आने वाला है और 22 जून तक तो इन्फोसिस ने मीटिंग करने के लिए है कि 22 जून को तो डिपार्टमेंट के साथ इन्फोसिस मीटिंग करेगा कि ये पोर्टल चलेगा कि नहीं चलेगा और उसमें क्या क्या ग्लिचेस हैं। तो आई एम नॉट वेरी मच होपफुल कि 30 जून तक ये पोर्टल ठीक ठाक से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि 30 जून तक तो किसी का रजिस्ट्रेशन इस नए रिजीम में अप्लाई हो नहीं पाएगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि अब गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे टैकल करती है और ये जो मिस ड्राफ्टिंग है क्लॉज नंबर 6 की, इसको किस तरीके से टैकल करेगी। ठीक है जी। और सेक्शन 12AA हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अब खत्म हो गया, 31 मार्च तक एप्लीकेबल था, राइट। और सेक्शन 12A भी नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, वो फॉर्म मैंने आपको बताई दिए हैं। फॉर्म नंबर 10A है पुराने वाले को रजिस्ट्रेशन कराना है और फॉर्म नंबर 10AB है अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है सर। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की। देखो सर, मेरी एक खास बात है कि जितना मुझे आपने टाइम फ्रेम दिया है
आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई टॉपिक विद इन दैट टाइम फ्रेम। और 6:19 हो गए, 6:30 बजे का मैंने टाइम दिया हुआ है, और मैं 6:30 बजे से पहले पहले अपना सब्जेक्ट पूरा कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और क्वेश्चन आंसर्स की मैं गारंटी नहीं करता सुमित जी, मेरा प्रायोरिटी पहले टॉपिक को पूरा करना है। सर फ्यू मिनट्स दे देना, 5-7 मिनट जरूर दे देना। चलो देखते हैं, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 13 में उन्होंने कहा कि जो ट्रस्टी हैं, जो सेक्टर्स ऑफ द ट्रस्ट हैं, उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई पैसा यूज होता है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आपने 11.5 में यदि कोई इन्वेस्टमेंट उस मोड में नहीं रखी तो उसकी एग्जेम्पशन चली जाएगी, राइट। लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन उन्होंने दिया कि कौन कौन आपके स्पेसिफाइड पर्सन है, कि अगर आपने ट्रस्ट का पैसा उनके लिए यूज कर लिया तो आपको एग्जेम्पशन उस पैसे की नहीं मिलेगी, राइट। और उन्होंने कहा कि अगर आपको एनोनिमस डोनेशन मिलते हैं 115 बीबीसी में, गुप्त दान मिलता है, गुप्त दान का जो प्रोविजन है मंदिर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और ये गुप्त दान का प्रोविजन क्यों आया था गुप्त दान को टैक्सेबल करने का, कि क्या था, ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, यूनिवर्सिटीज थी, और ये जितने भी अस्पताल थे, इन लोगों ने कैपिटेशन फीस लेनी शुरू की थी। आपको याद होगा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पकड़े गए थे जो खासतौर से जो मेडिकल की कोचिंग कराते हैं, डॉक्टर बनाते हैं जितने भी इंस्टीट्यूट, तो वो लोग नंबर 2 में कैपिटेशन फीस लेते थे, हर स्टूडेंट से 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए अदर देन द फीस, राइट। और जब किसी के यहाँ सर्च हुई तो वो पैसा पकड़ा गया। जब वो पैसा पकड़ा गया तो बोले सर वो तो हमारा गुप्त दान है। गॉट माय पॉइंट, ये तो हमारा गुप्त दान है, और गुप्त दान क्या होगा, मेरी इनकम में चला जाएगा, उसके अगेंस्ट मुझे एप्लीकेशन मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत भी की, सब कुछ किया, और करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के पास मिल भी गए। किसी किसी ट्रस्ट के पास तो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जो मेडिकल यूनिवर्सिटी चलाते हैं खासतौर से, एक एक सर्च में गवर्नमेंट को 100 को 200 करोड़ रुपए का एक्सीडेंट मिला, ठीक है। लेकिन वो बोले साहब ये तो हमारा गुप्त दान है, तो ये गुप्त दान को आप मेरी इनकम में ऐड कर लीजिए, सिंपल। और इसके अगेंस्ट जब मैं खर्चा करूंगा तो अपनी बिल्डिंग बना लूंगा और मेरे को एप्लीकेशन मिल जाएगा। थिंग्स वर वेरी सिंपल। तो ये 115 बीबीसी उसके लिए है, या भाई जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अस्पताल है, आप गुप्त दान नहीं ले सकते। अब उन्होंने इसकी लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी, 5% ऑफ द टोटल रिसीट और ₹1 लाख विच एवर इज हायर, इतना गुप्त दान ले सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोर्स फीस तो है 2 लाख रुपए और गुप्त दान पर स्टूडेंट आया 20 लाख रुपए, राइट। ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए बीबीसी दिया है कि अगर गुप्त दान आपके पास आएगा तो आपको 30% उसके ऊपर सीधा सीधा टैक्स देना है, उसके ऊपर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। मंदिरों के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, ठीक है सर। और अदर देन एजुकेशनल और बाकी जो इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। उनके पास कोई ओकेजन नहीं होता कि वो उस तरह की रिश्वतबाजी में इंडल्ज हो, राइट। तो ये 115 बीबीसी हो गया। और एक हो गया सेक्शन 13 सबसेक्शन 9। ये 115 बीबीसी मैंने पढ़ाया सेक्शन 13(7) और 13(8) के कॉन्टेक्स्ट में। और सेक्शन 13(9) में उन्होंने कहा कि आपको जो अब बेनिफिट मिलना है सेक्शन 11 का, वो आपको तभी मिलेगा जब आप फॉर्म नंबर 9A, फॉर्म नंबर 10 और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट के भीतर भीतर फाइल कर दें। अगर आप ये फाइल नहीं करेंगे तो आपको सेक्शन 11 to 13 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। और किसी जेन्युइन रीजन की वजह से यदि आप फाइल नहीं कर पाए तो देयर इज एन ऑप्शन कि आप अपने डायरेक्टर एग्जामिनेशन के पास जाएं, एक डिले ऑफ कॉन्डोनेशन की पिटीशन डालें, चाहे वो 9A का डिले हुआ हो, चाहे वो फॉर्म 10 का डिले हुआ हो, चाहे वो रिटर्न फाइल करने का डिले हुआ हो। तो अनलेस एंड अनटिल योर डिले इज कॉन्डोन्ड, तब तक आपको सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। हर साल डिले ऑफ कॉन्डोनेशन और डिले के लिए डिपार्टमेंट के सर्कुलर आते हैं, राइट। और उसके अलावा अगर डायरेक्टर एग्जाम्पशन आपकी डिले कॉन्डोन नहीं करता, देन यू कैन फाइल ए कॉन्डोनेशन पिटीशन बिफोर सीबीडीटी। और ये दोनों आपकी डिले कॉन्डोन नहीं करते एंड यू स्टिल फील दैट योर रीजंस आर जेन्युइन, कि आपका डिले किस वजह से हुआ, देन यू कैन फाइल ए रिट पिटीशन बिफोर दी हाई कोर्ट, ठीक है सर। ये आपके पास इसका रेमेडी अवेलेबल है। और एक लास्ट सेक्शन है 115(TD), वो कहता है कि कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आप उसको डिसॉल्व करते हैं सर, ठीक है, तो जितनी भी क्रेडिट इनकम है जिसको आप एग्जाम्प्ट क्लेम कर चुके, उसके ऊपर पूरे के ऊपर आपको MMR के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा जब आप उसे दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करेंगे, राइट। तो जितनी भी आपकी क्रेडिट इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो मैंने आपके साथ सारे रूल पढ़ा दिए आपको, और पूरा सेक्शन
215 से लेके और 115 TD तक का सारे लीगल प्रोविजंस कवर कर दिए। 6:24 हुए हैं। 5 मिनट का टाइम आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए सुमित। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव सर। आशा प्लीज शेयर द स्क्रीन। सर मैंने क्वेश्चंस को वर्ड फाइल में बना लिया सो दैट आपके लिए आसान रहेगा रीड करना और रिप्लाई करना। एंड क्विकली वी विल कवर। एंड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि केवल आज ही का सेशन है, 5 सेशन है हमारे पास। डेफिनेटली हम सर को एक बार दोबारा भी इनवाइट करेंगे और जितनी भी क्वेरी होंगी जब तक सॉल्व नहीं होंगी तब तक हम ये कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे आप लोगों का। सो विद दिस नोट आशा ये जितने भी लोग हैं हमारे कोर्स के अंदर, दे विल कंटिन्यू टिल द एंड फॉर सारे सेशन के जी लिए। सर 5 डेज सर, 5 डेज सेम पर्सन। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। इसका मतलब वाकई में सब लोगों को बहुत मतलब इंटरेस्ट है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पढ़ने के लिए। लिमिट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट टू अप्लाई फॉर 1023C। सर आपको अप्लाई करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी 5 करोड़ रुपए से कम रिसीट है और 31 मार्च 2021 तक 1 करोड़ रुपए और 31 ये आपने ऊपर नीचे कर दिया क्या? मैंने क्वेश्चन तो कुछ और पढ़ा था। आशा क्वेश्चन एक बार स्टार्ट कर दो यहीं से जहां से मैं इसको मैं वही पूछती, स्क्रीन ठीक से आ रही है क्या? नहीं मैंने स्क्रीन दिखा है, मैंने क्वेश्चन कहां से पढ़ लिया था ये। ओके वो नेक्स्ट आ जाएगा सर। आशा आगे बढ़ो नेक्स्ट। सर आप नेक्स्ट बोल दीजिएगा तो मैं आगे स्क्रॉल डाउन कर दूंगी इसको। अच्छा, क्लॉज ये क्वेश्चन 1 से करें। मनाज साहब का आपका तो हो गया ना, सुखविंदर जी आपने तो पूछ लिया था, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं सर। Anuj ji, there is one school registered under section 12. Now it wants to open a temple along with the school. The main object is written that the society can undertake spiritual activity. Can we say that constructing temple we are undertaking spiritual activity? तो सर मंदिर बनाना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कोई जरूरी नहीं होता है ना। स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो आध्यात्मिक चीजें होती हैं, लेकिन हाँ मंदिर से स्पिरिचुअल एक्टिविटी ड्राइव भी हो सकती है। देयर इज ए कनेक्शन। तो लेकिन मंदिर बनाना, स्कूल में मंदिर बनाना तो स्कूल के ऑब्जेक्ट में भी कवर होगा, उसका एप्लीकेशन अलाउ होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। किसी भी स्कूल में यदि मंदिर बनाते हैं, चर्च बनाते हैं या मस्जिद बनाते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटी आपके ऑब्जेक्ट में लिखा है और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप मंदिर बनाते हैं स्कूल में, तो इसमें कोई बात नहीं है। और सरस्वती माँ का मंदिर बनाइए, कुछ भी बनाइए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज की जरूरत नहीं होती। जनरली आमतौर पे ऑब्जेक्ट क्लॉज में कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आशा जी, इज देयर नीड टू गेट EEC फॉर इंडियन ट्रस्ट? तो FCRA का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप बाहर से। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी चाहिए होता है क्या सर अपने को? कोई अगर मुझे जानकारी नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मेरे ख्याल से ना तब चाहिए होता है जब आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो। बेसिकली ट्रांसपोर्टर। मैंने कहा जब आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तब आपको चाहिए, राइट? डोनेशन लेने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? 4 नंबर। कैन एडवर्टाइजमेंट इनकम ट्रस्ट बी कंसीडर्ड मोर देन 20%? आप अगर एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं तो बिजनेस इनकम की हो जाएगी। अगर आपने स्कूल में एक सोविनियर छपवाया है और सोविनियर में किसी का नाम दे दिया तो ये बिजनेस में थोड़ी जाएगी। अगर एक बिजनेस को आप, एक बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस को समझने के लिए ना बिजनेस की डेफिनेशन को समझना जरूरी है। बिजनेस आपका तब होगा जब आपकी कंटिन्यूअस एक्टिविटी होगी। आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया कि हमने एडवर्टाइजिंग का काम शुरू कर दिया, आपने एक सोविनियर में छुपवाने के लिए या स्कूल के अंदर एक बोर्ड लगवा दिया, इट डज नॉट अमाउंट टू बिजनेस, है ना। तो थोड़ा सा बिजनेस की डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़िए शुभांग शर्मा जी। तो बिजनेस के लिए आपको कैपिटल ईयर मार्क करनी पड़ती है, ठीक है ना, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और एक कंसिस्टेंट एक्टिविटी करनी पड़ती है, देन इट अमाउंट्स टू बिजनेस। नेक्स्ट सर, वेयर वी शो द एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एग्रीमेंट का भाई साहब कहीं शो करने की जरूरत नहीं है। गोरक्षा, यस गोरक्षा इज चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल नेचर में होती है सर, कोई दिक्कत नहीं है जी। पब्लिक जनरल यूटिलिटी में कवर होगी गोरक्षा, कोई इसमें इश्यू नहीं है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट इज व्यापारिक संगठन की जो कमेटी बनती है, लाइक चाय व्यापार संघ एंड ऑल, दे आर कवर्ड अंडर ये म्यूचुअल एसोसिएशन होती है देयर। ठीक है, ये म्यूचुअल एसोसिएशन होती है। म्यूचुअल एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है चैरिटेबल। ये थोड़ा सा बड़ा करो जरा स्क्रीन, आपने वर्ड बहुत छोटे कर दिए। अभी 50 साल से उम्र ज्यादा हो गई है। Is it okay sir now? ठीक है। Okay sir, okay, sorry. Can a trust having object as an advancement of any other object of general public utility claim non-corpus donation to a yoga trust as its application of income? एप्लीकेशन ऑफ इनकम पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉर्पस से डोनेशन नहीं दे सकते।
नॉन कॉर्पोरेट कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट ईयर की इनकम से। आपने सपोज करिए, अब देखिए मेरा काम है योगा को प्रमोट करना, मैंने एक ट्रस्ट और कोई योगा इंस्टीट्यूट्स हैं और योगा इंस्टीट्यूट्स वाले मुझे कहते हैं कि जी हम आपके यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज कर देंगे, आप हमें डोनेट कर दीजिए। वो कोई फीस की फॉर्म में नहीं ले रहे, है ना। तो मैंने उनको 21,000 रुपये का कैंप लगाने के लिए डोनेशन दे दिया और उन्होंने अपने 4 आदमी मेरे पास भेज दिए। ठीक है, तो इट इज फॉर माई पर्पस। नेक्स्ट, फॉर ट्रस्ट हैविंग, आप पढ़ो एक बार, नहीं मैं बहुत थक गया। For a trust having its object of the advancement of any other object of general public utility other than relief of poor or providing education or preservation of monuments, etc. These are other objectives may not be covered in their object clause. Similarly, if yoga trust makes some donation to a religious trust or say to a trust engaged in preservation of monuments, can this amount be claimed as an application of income as they are not covered by the object clause? नहीं, आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर अगर आप कुछ भी अलाउ करते हैं, दैट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगा। चिराग गोयल का क्वेश्चन है कि इन सम नोटिसेस एओ मेक्स 15% कैलकुलेशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ सम एक्सपेंसेस। मैंने आपको शुरू में बताया कि 90% ऑफ द प्रोफेशनल्स एंड मोर देन 90% ऑफ द टैक्स ऑफिसर्स आर नॉट अवेयर ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स प्रोविजन। जो हो गए सर, किसी का कसूर नहीं है, इट्स प्योरली लैक ऑफ नॉलेज। जो कवर हो गया उसको स्किप कर देंगे। दैट्स नॉट whether accumulation has to be done against a particular project or it can be general purpose। नहीं, जनरल पर्पस नहीं हो सकता। 11(2) का जब आप एक्यूमुलेशन करोगे तो आपको पर्पस लिख के देना पड़ता है फॉर्म के अंदर। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फॉर्म। ओके, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रिलीफ टू पुअर? One client is assisting roadside petty vendor against police harassment and all, whether that object comes under charitable? 100% चैरिटेबल है सर। If trust has total income of 10 lakh and application is 7 lakh, 1.5 is accumulation which is allowed. So balance 1.5 lakh which is shortfall in application is total income. But will it be taxable since it is below threshold? आपकी टैक्सेबल इनकम अगर ये 5 लाख रुपए हो जाएगी तो आपको नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स लगेगा। 2.5 लाख की आपको बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी। बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। How many types of donations are there? Only 2 type donation exist, corpus and voluntary, or any other? ये बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, 2 ही होती है। Is there any remedy if we fail to file form 9A for income accrued but not received? नहीं कर सकते सर, आपके पास आपको 9A तो फॉर्म करना ही पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। आप डिले करके फाइल कर दीजिए, कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगा दीजिए। A charitable trust is run a mini hospital, whether the receipt from patients are income of the trust or after the incidental expenses to run the hospital. इन माय ओपिनियन, लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, मैंने आपको कहा, लेकिन मेरे ओपिनियन में जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जितनी भी आपकी रिसीट होती हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की हॉस्पिटल से, वो सारी की सारी रिसीट्स आपकी ग्रॉस इनकम में आएगी और जो आप खर्चा करते हो दैट विल बी अलाउड एज एप्लीकेशन। What is corpus in case of Section 8 company? Can director shareholder advance to be treated as corpus if an entity is simultaneously involved in business activity? Corpus donation जो है ना ट्रीट नहीं कर सकते आप, इट इज एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द डोनर। आपके ट्रीट करने से कुछ नहीं होगा, आपके डोनर ने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी है उसके वो आपकी डोनेशन का करेक्टर डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते। Section 11(1)(a) and 115(t)(d) differentiate fees. Total assets liability, total assets 100, liabilities 10, corpus 90. आप इस वीडियो को दोबारा पढ़ लेना, इसका क्वेश्चन को मैंने बड़ा अच्छे से कवर किया है। 1153 तब होता है जब आपकी ट्रस्ट डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो नॉन कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है सेक्शन 115(d). Then next is, can depreciation on asset may be claimed which is purchased by utilizing corpus donation? Yes. Okay, then next we can skip. Please explain difference between corpus. I think you have covered this. Corpus donation. Corpus donation सीधा सीधा सा है। corpus का मतलब हुआ कि आपका इस पैसे को आपको संभाल के रखना है। मैंने एग्जांपल दिया था शुरू में, आप फंड के लिए कह सकते हो, आप कहते हो उससे कार खरीदनी है, डोनर ने आपको। ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम हम जो क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए बस वही लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ये दिस वी कैन स्किप। रिकॉर्डेड वीडियो विल बी अवेलेबल, सो आप लोग एक बार दोबारा भी देख सकते हैं और कल भी डिस्कस कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन अप्लाई मिलती है ट्रस्ट को, कोई दिक्कत नहीं है सर। डेप्रिसिएशन मिलेगा, मैंने आपको बताया आपकी कैपिटल एसेट होना चाहिए आउट ऑफ कॉर्पस, तब आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपने एप्लीकेशन क्लेम कर लिया तो नहीं मिलेगा। The general public charitable trust can take donation either general or corpus for building a temple, and whether it will be treated as application of fund for नॉन कॉर्पस की डोनेशन जो आपको करंट ईयर में मिली है उसमें से आप डोनेशन दे सकते हो अदर देन कॉर्पस डोनेशन, ठीक है सर। और अगर आपका एक्यूमुलेटेड इनकम है या कॉर्पस डोनेशन आपके पास का पैसा है उसको आप डोनेट नहीं कर सकते।
उससे आप कॉर्पोरेट डोनेशन नहीं दे सकते, आप वो आगे डोनेशन नहीं कर सकते। Please 1023 इंटरप्ले with सर बड़ा section क्लियर 11. कर दिया, आपको एक ही सेक्शन मिलेगा, 1023C में जाइए या सेक्शन 11 में जाइए। सेक्शन 11 का स्कोप बड़ा वाइड है और सेक्शन 1023C में आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन को एग्जम्पशन मिलती है, राइट। वहां पर आपको 1 करोड़ तक या 5 करोड़ तक आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है 1023C में। अगर आपकी 1 करोड़ से 5 या 5 करोड़ से ज्यादा आपकी ग्रॉस रिसीट होंगी तब आपको वहां पर 1023C में रजिस्ट्रेशन कराना है, राइट। और अब आपको एक ही एग्जेम्पशन मिलेगी, या तो आप 11 में ले लीजिए या 1023C में ले लीजिए। जनरली जो छोटे स्कूल हम खोलते हैं, खासतौर से 8वीं क्लास तक का या 12वीं क्लास तक का जो छोटे स्कूल हैं और जो छोटी हमने अस्पताल बना ली है अपने मोहल्ले नुक्कड़ में, तो उनको इस रिगर्स से बचाने के लिए ये सेक्शन 1023C है कि आपने कोई छोटी डिस्पेंसरी खोली है और पूरे साल में आपकी 10-15 लाख रुपए की कलेक्शन होती है वहां पर, तो उनको कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ना सेक्शन 11 में और ना सेक्शन 1023C में। Next is a charitable trust sell the immovable properties which is received at time of formation of trust or after. Whether the trust can make investment in FDR to save the tax. ये तो मैंने बता दिया आपको, सर्कुलर लिखवाया तो है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। 1975 सर्कुलर, हाँ 1975 का आपको सर्कुलर लिखवा दिया, बहुत अच्छा सर्कुलर है ये आपको आपकी जो ना सबसे बड़ी एसेट होगी आज के इस सेमिनार की। I hope corpus donation giver will not be allowed to claim as expenditure. जो डोनेशन दे रहा है वो एक्सपेंडिचर, डोनेशन देना कैसे एक्सपेंडिचर अलाउ होता है? इट्स नॉट अलाउड। नेक्स्ट इज वेदर 1023 का सेपरेट डिस्कशन भी है तो इसे स्किप कर सकते हैं, कल हम एक बार स्किप करते हैं, दैट कैन बी डिस्कस्ड इन द सेपरेट सेशन। हां, डिटेल डिस्कशन इज टुमारो। Is there any limit on gross receipt to apply? Again 1023 तो question. ये मैंने 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ और 5 करोड़ ऑलरेडी। Is it correct to say that 11A if capital gain applied for purpose of trust can यानी also be allowed? कैपिटल एसेट खरीदने के लिए आपको अप्लाई करना है, पर्पस ऑफ ट्रस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर कैपिटल गेन का आप सपोज करिए, हम एक एग्जांपल कैरी कर रहे थे कि हमने 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी है ना, और मेरा मान लिया वहां पर हमने कैपिटल गेन कंप्यूट किया था 6 लाख रुपए में, मुझे कैपिटल गेन आया, मुझे याद नहीं आ रहा कि एग्जांपल में कितना यूज किया था, 6 लाख रुपए कैपिटल गेन आया मेरे पास, ठीक है। अब 6 लाख रुपए के जो मेरा कैपिटल गेन में इनकम हो गया और कुछ भी कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं उसको कोई नई फ्रेश कैपिटल एसेट नहीं खरीद पाया, राइट। ये क्वेश्चन है आपका। अब इस 6 लाख रुपए के अगेंस्ट में क्या नॉर्मल एप्लीकेशन कर सकता हूँ? आंसर इज यस। आपके जो ट्रस्ट की जो ऑब्जेक्ट हैं वो अगर आपने अप्लाई किया तो वो इस कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेटअप हो जाएंगे। यहाँ पर हेड मिक्स नहीं हो रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यहाँ पर हेड्स नहीं जा रहे हैं, एक ही हेड में सारी इनकम जा रही है ट्रस्ट की। नेक्स्ट इज please go with the financial year definition. Financial year starts from the commencement of business. बिल्कुल, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और ये अगर आपका पुराना कमेंस हो गया तो 1 अप्रैल। In case of new registrations, we can file ITR 7 or not. चाहे आपका नया रजिस्ट्रेशन, चाहे मैंने आपको कहा जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सबके लिए ITR 7 कंपलसरी है फाइल करना। And we have a separate session on this also. ये इन्होंने पूछा जो सेक्शन क्लॉज 6 का लॉजिकल मीनिंग कुछ नहीं है सर, मुझे भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसे क्यों लिखा है, या तो भूल से लिख दिया ऐसा कि 1 साल तक आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और देखिए सर, लॉ के अंदर कुछ भी आप रीड नहीं कर सकते, जो लॉ का प्लेन मीनिंग निकलता है आपको वही समझना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से कोई मीनिंग उसमें इम्पोज नहीं कर सकते। Next is, can share trading be done in trust and 30% reduction available under rental income? नो सर, रेंटल इनकम हेड में नहीं जाएगी। मैंने आपको बताया ट्रस्ट की इनकम का सेपरेट कोड है, 5 हेड ऑफ इनकम में आपकी इनकम नहीं जाएगी, ठीक है। और जो ट्रेडिंग वेडिंग शेयर्स की होती है ये बिजनेस एक्टिविटी में फॉल कर जाएगी और आपके ऊपर सेक्शन 215 का प्रोवाइजो लग जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम 1023C, तो वी कैन और एक बात और बता दूं, 11.5 में जो मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें शेयर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कवर नहीं होती, तो जितने भी पैसे आप शेयर्स में लगा दोगे वो सारे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा MMR के ऊपर। नेक्स्ट इज फ्रॉम 1023C, तो वी कैन स्किप दैट आल्सो। ये क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन है ना, उसको कवर करने के खत्म करते हैं। ले लीजिए, सही ले लीजिए। Some educational society registered under section 12 as well as section 236 now the renewal, जो आप चाहो वो करो सर, आपकी मर्जी, गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया आलोक जी, तो आप जिस सेक्शन में कंटिन्यू करना चाहें इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। और दोनों सेक्शन में बेसिकली कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आपकी टैक्सेबल इनकम दोनों सेक्शन में करीब करीब एक जैसी आएगी। 1023C में जाने का फायदा तब है, अब मान लिया सपोज कीजिए मेरी एक एजुकेशनल सोसाइटी है XYZ और उसमें मैं 10 स्कूल चलाता हूँ। अब मेरे पास बड़ा आराम है कि मैं अब उन 10 के 10 स्कूलों को अलग अलग कर दूं,
और उनके 10 के 10 वो 5 करोड़ से नीचे चले जाएंगे, तो मुझे सेक्शन 11 में रजिस्ट्रेशन भी कराने की जरूरत नहीं है और सेक्शन 23C में भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। व्हाट माय पॉइंट? बस समझ में आ गई? ठीक है सर। सर So we have राजीव taken सर all the एक questions up to एक 6:20 PM क्वेश्चन जो है receive और हुए है, थे। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सर कि हाँ जी। 10AB फॉर्म साइट पर अवेलेबल नहीं है न्यू ट्रस्ट और एनजीओ के लिए। अभी तो 10A भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, नथिंग इज देयर। राइट। तो फ्रेंड्स अब तो साइट ही नहीं चल रही। So there are lots of discussion under this NPO sector. So हमने इसीलिए इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया, एक ही सेशन में एंटायर डिस्कशन करना लेकिन नहीं था। मैं देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय फेलो स्पीकर जो मुझे बाद में फॉलो करेंगे, देखिए आपको हो सकता है कि बाद वाले स्पीकर से कुछ और सुनने को मिल जाए जो मैंने आज आपको बोला, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? तो सर सबके नहीं राइट सर। मैंने आपको बताया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का जो टैक्सेशन है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, और जिन लोगों ने समझ लिया उनके लिए सिंपल है। तो और मैं कई बार देखता हूँ कि जो लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं उनसे भी बहुत कई बार इसमें गलतियां हो जाती हैं, और खासतौर से जब अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट हैं वो लोग कहते हैं ITR 5 भर दो। अरे सेक्शन 139(4) है, आपको स्पेसिफिकली बोलता है इफ यू आर ए चैरिटेबल ट्रस्ट और ए रिलीजियस ट्रस्ट, तो आपको 139(4) में आपको ITR 7 ही फाइल करना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही तो वी कांट हेल्प, वी कांट फाइट विद द मशीन। सर दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 5 सेशन। कहीं ना कहीं हमारे इतने इम्पैक्ट हैं कि ITR 5, 7, नया रजिस्ट्रेशन और असेसमेंट। सैटरडे को एक सेशन है जिसमें असेसमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो अभी आपने कहा था कि AO को ही नहीं पता है कि क्या करना है, तो दे ऑल इश्यूज विल बी डिस्कस। सो वी हैव 10 hours डिस्कशन on this NGO. So I think by the end of the 5 days you will get full knowledge of the NGO and full confusion, जैसा कि सर ने बोला, राजीव सर ने, कि जितना सिंपल है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो कुछ हम क्लैरिफिकेशन भी मिलेगी, कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी रह जाएगी। सो विद दिस राजीव सर थैंक यू वेरी मच। एक नवनीत जी इनके सब सुमित गौशाला जी। है जी। सुमित नवनीत जी जी आज कल आपका हमने क्वेश्चन ले लेंगे। आज हमारे पास 6:20 तक जितने क्वेश्चंस आ गए थे हमने वो सारे कवर कर ऑलरेडी लिए। सारे ले लिए, फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं कल स्पेशली 6:20 PM जो भी आए हैं तो वी विल ट्राई टू गेट इट। कल जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं आप लोगों के, सुनो, डेफिनेटली वी विल टेक अप। एक काम करना आप जिस दिन आप अपना लास्ट सेशन करोगे ना, जिस दिन आप लास्ट सेशन करोगे अपना कंक्लूड करोगे जब आप, तो मैं आपको 6:30 बजे के आसपास ज्वाइन कर लूंगा। जी ठीक सर, है? श्योर सर। ठीक है, थैंक यू आप सर, मुझे थैंक बता यू वेरी देना। मच सर वंस तो उस अगेन। दिन आपके 5 सेशंस की जितनी क्वेरी होंगी ना, और साथ में आज के सेशन की मिला के, वो सारी एड्रेस कर लेना, आई विल रिजॉल्व इट। श्योर सर, श्योर। वंडरफुल सर, वंडरफुल एंड थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। आपने एक बार फिर से अपनी कंसेंट दी सभी लोगों के लिए। सो विद दिस वी हैव अनदर 4 सेशंस और सर की द्वारा प्रेजेंस भी हमें मिलने वाली है। सो फॉर्मली अमन जी प्लीज गिव ए वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Rajiv sir, on behalf of CASA. The way you explained the provisions, it made easy for all the participants to understand the concept. And we know the time is restriction for right now, and definitely we'll hear from you on future as well. Thank you so much, sir. And I would request now. I would. हाँ, just a minute, sir. It's for you one certificate of appreciation is there as our. अरे अप्रिशिएट तो हमें करने हैं, आप लोगों के एफर्ट। नहीं सर, इट्स माय ये रह जाता सर। Sir, this is for you certificate of appreciation. So thank And you I very will much, so send you kind of through you, mail. and I really enjoyed deliberating and coming among all of you. Thank you very much, friends. Thank you to each participant, and tomorrow we will meet again 5 PM. So thank you very much. Thank you, Rajiv sir, for your time. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, Lata ma'am, for joining. Thank you, Asha ji, Praveen ji, जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ। बाकी मनोज जी, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, और कल मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा कि जितनी भी और क्वेरीज हों और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करें, तो हमारा मोर और लेस सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कल हमारा जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और 1023 से रिलेटेड डिस्कशन है। देयर आफ्टर मैंने एक सेकेंड में, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर कुछ कोई कहना चाहे तो। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, participate. Yes, you can unmute yourself right now.
सर मोबाइल नंबर मिल जाए राजीव जैन सर का? मैं एक बार उनसे पूछ के शेयर कर दूंगा, डेफिनेटली मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा। और जो कंसर्न हमारी क्वेरी, हमने सभी चीजों को माइंड में रख के सेशंस डिजाइन किए हैं, चाहे वो जीएसटी इम्पैक्ट हो, ITR 5 और 7 का कंफ्यूजन हो, असेसमेंट रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो सैटरडे एक सेशन रखा है, यहाँ पर असेसमेंट ITR की जो कंप्लायंसेस में इश्यूज आते हैं, और कल हमारा स्पेसिफिक न्यू रजिस्ट्रेशन और 1023 पर डिस्कशन है। सो विद दिस हम कहीं ना कहीं सभी चीजों को प्रॉपर्ली कवर कर रहे हैं 5 डेज में। वैसे मैं बताता हूँ आपको कि लास्ट जब भी मैंने प्लान किया सेशन, एक ही सेशन प्लान करता था, इतनी क्वेरीज होती थी कि हम एक सेशन में 2 घंटे में क्वेरी कवर नहीं कर सकते। आज भी हमने देखा इतनी क्वेरीज हैं, अगले 4 दिन भी हम दोबारा देखेंगे कि इतनी क्वेरीज होंगी, कि फिर भी क्लैरिटी जितनी मिल जाए अच्छा है। हम अलग अलग स्पीकर्स को जीएसटी, असेसमेंट, ITR सभी पे सुनेंगे। सो विद दिस, और भी कोई सजेशन हो तो आप सभी को मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है ओवर मेल, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मेकिंग दिस इंटरेक्टिव एंड वंडरफुल सेशन। डेफिनेटली सभी के पास कोई ना कोई 1 या 2 ट्रस्ट जरूर होते हैं जिनके हम ऑडिट या कंप्लायंस कर रहे होते हैं, तो उन इश्यूज को एड्रेस किया जाए, उन इश्यूज को समझा जाए। अभय जी कुछ कहना चाहते हैं आप? Thank you. I want to say one thing. I am waiting for the recordings. And also, is there any PDF file on the subject? नहीं सर, definitely other speakers will share, but राजीव जी का ट्रेंड है कि वो PPT शेयर नहीं करते हैं, तो definitely you will not get, and recording will be shared by tomorrow morning. Okay, thank you. अभय जी प्लीज। Thank you, Sumit ji, such a organization. Thank you everyone. Nakul ji, thank you. सभी को धन्यवाद। Now it's time to close the meeting. Thank you very much. Thank you.